ना जो बुवार लागছে just a minute. Once the recording will start, I will start the lecture. Okay, recording is started. Let us start the lecture. So in my last lecture, in the income from other sources, we have discussed about the, lastly we are discussing the various income which are taxable under the head, income under the head income from other sources. So we have discussed this interest income, we have discussed this exempted interest income. Okay, all these points we have discussed. Okay, now see the next point is point number 11 on the page number 289, that income from letting out of machinery, plant and furniture. Now suppose if you let out the machinery, plant and furniture, and see from that if the income is arise, suppose आपके पास कोई plant है, कोई machinery है, कोई furniture है, and that you have let out and the income is arise, then it is taxable. It is always taxable under their income from other sources. But see when it is not taxed under their PGBP. देखो क्या पॉइंट कहता है कि द इनकम फ्रॉम मशीनरी प्लांट और फर्नीचर belonging to assessee and let out on hire, then is chargeable as per the as income from other sources. लेकिन कब? If the income is not chargeable to income tax under the head profit and gains of business and profession. So it depends on case to case basis. Suppose if you have let out plant, machinery and furniture. Okay. Now suppose if you let out the plant, machinery and furniture and from that the income is arise, it depends on case to case basis. Suppose समझ लो कि मेरे घर में कुछ extra furniture पड़ा है और I don't want this, so I have given on a rental basis. मेरे घर में 4-5 टीवी हो गए तो मैंने किसी को रेंट पे टीवी दे दिए. So it is not my business to let out the TV. एंड मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा था, मैंने उसको किराए पे दिया, एंड इफ द इनकम इज अराइजेस इट इज टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. लेकिन समझ लो मेरा धंधा ही क्या है कि टीवी को रेंट पे देना ही मेरा बिजनेस है. ओके, तो सपोज मेरे पास बहुत सारी टीवीज है और आई एम गिविंग ऑन अ रेंटल बेसिस. नाउ इफ द रेंट इज अराइज दैट इज चार्जेबल अंडर देयर पीजीबीपी. सो इट डिपेंड्स के अगर वो मशीनरी है, प्लांट है, फर्नीचर है, व्हाटएवर इट इज, अगर उसको लेट आउट करना आपका बिजनेस है देन इट इज टैक्सेबल अंडर दैट पीजीबीपी. बट इफ इट इज नॉट योर बिजनेस देन इनकम विल बी ऑलवेज टैक्सेबल. then whatever income is arise it will be always taxable under the head income from other sources. वो income from other sources में ही taxable होगा. which income from letting out of plant, machinery and furniture. Okay, when it is taxed here, if it is not taxed under the head प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट, अगर वो लेट आउट करना आपका बिजनेस हो गया तो इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन, अदरवाइज इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी. ओके, नाउ सी दिस इज द पॉइंट. वन अनदर पॉइंट नंबर 12 इज दैट इनकम फ्रॉम कंपोजिट लेटिंग आउट ऑफ प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर एंड बिल्डिंग. देखो आप अकेला प्लांट, मशीनरी एंड फर्नीचर को लेट आउट करते हो, इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि वेयर द इनकम विल बी टैक्सेबल. ओके, कि अगर मैं प्लांट, मशीनरी और फर्नीचर को अगर मैं लेट आउट करता हूँ, एम आई ऑडिबल? हेलो, यस सर. Yes, sir. यस सर. थोड़ी देर में इसीलिए पूछना पड़ता है कि अगर कॉन्टेक्ट कम हो चला गया हो तो क्या है कि अकेला मैं ही बोलता रहूंगा, ऐसा होगा. ठीक है, इसीलिए मैं पूछता रहता हूँ. ठीक है, देखो तो ये if you we are talking about the letting out of plant, machinery and furniture. अगर ये इसको let out करते हो, if you are letting out the plant, machinery and furniture, मतलब किसी को किराए पे देते हो, then there are two possibilities
कि इसको लेट आउट करना आपका बिजनेस है या नहीं है। ओके, नॉट अ बिजनेस। अगर वो बिजनेस है तो अगर यहाँ से कोई रेंट मिला, कहाँ टैक्सेबल होगा? इट विल बी टैक्सेबल अंडर दैट पीजीबीपी। अगर वो बिजनेस नहीं, आपके पास कोई एक्स्ट्रा पड़ा था, मशीन, प्लांट या तो कोई फर्नीचर, और इफ यू हैव लेट आउट, इफ द इनकम इज अराइज, इट इज टैक्सेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये तो सीधा सा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 11। लेकिन ये पॉइंट नंबर 12 जो है, सपोज इफ यू लेट आउट plant machinery and furniture, okay, along with building, okay, अगर उसको आपने बिल्डिंग के साथ लेट आउट किया है, ओके, ये भी आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ये कैसी सिचुएशन होती है कि अगर इफ टू लेटिंग्स आर सेपरेबल, अगर देखो दो जो लेट आउट आपने किए, दो चीज, प्लांट मशीनरी एंड फर्नीचर अलॉन्ग विद द बिल्डिंग, और बिल्डिंग और प्लांट मशीनरी सेपरेबल है, इफ द टू लेटिंग्स, मतलब दो चीजें आपने, बिल्डिंग और प्लांट मशीनरी और फर्नीचर आपने लेट आउट किया, और इफ द टू लेटिंग्स आर सेपरेबल, मतलब ये दोनों को एक दूसरे से अलग करके भी किराए पे दिया जा सकता है, ऐसी सिचुएशन है। तो प्लांट मशीनरी एंड फर्नीचर का जो रेंट होगा ना, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, और जो बिल्डिंग का रेंट है ना, वो बिल्डिंग का रेंट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा। ओके, व्हेन बोथ आर सेपरेबल, अगर ये दोनों सेपरेबल है। बट इफ दिस टू लेटिंग्स, अगर ये दो लेटिंग्स है, इफ द टू लेटिंग्स आर नॉट सेपरेबल, अगर ये दोनों को आप सेपरेट नहीं कर सकते, अगर इफ द टू लेटिंग्स आर नॉट सेपरेबल, तो क्या होगा? द एंटायर इनकम, पूरी जो इनकम है घर की भी और मशीनरी की, दोनों की, प्लांट मशीनरी और फर्नीचर और बिल्डिंग, वो दोनों की जो पूरी रेंट आती है, दैट एंटायर रेंट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ओके, तो ये ध्यान रखना है कि अगर दो चीज सेपरेबल है तो बहुत सिंपल, प्लांट मशीनरी और फर्नीचर की इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, और बिल्डिंग की इनकम हाउस प्रॉपर्टी में। बट इफ द टू लेटिंग्स आर नॉट सेपरेबल, देन एंटायर इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। So we have to check that both are separable or not separable. So you can see here point number 12, where the assessee let on hire a machinery, plant and furniture belonging to him, and also a building, and the lettings of building is inseparable from the letting of said machinery, plant and furniture, then the income from such letting is known as composite rent, and if it is not chargeable to tax under the PGBP, it will be taxable under the head income from other sources. मतलब दोनों को अलग कर सकते तो बहुत सीधी सी बात है कि घर का रेंट हाउस प्रॉपर्टी में नहीं हो सकता, मतलब, और प्लांट मशीनरी और फर्नीचर का रेंट कहाँ टैक्सेबल होगा? इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, बट इफ बोथ आर इनसेपरेबल, तो क्या होगा? तो एंटायर रेंट अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, लेकिन कब? इफ इट इज नॉट टैक्स अंडर द हेड पीजीबीपी। अगर आपको वो लेट आउट प्लांट मशीनरी और फर्नीचर के साथ ही लेट आउट करना आपका मेन बिजनेस ही है, तो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा, लेकिन वो आपका बिजनेस नहीं है। सपोज समझ लो, आई एम हैविंग वन फैक्ट्री, ओके, और फैक्ट्री के अंदर एक मशीन मैंने ऐसे फिट किया है कि अगर बिल्डिंग को लेट आउट करना है तो मशीन को लेट आउट करना ही पड़ेगा, और मशीन को लेट आउट करना है तो बिल्डिंग लेट आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि बिल्डिंग और मशीन दोनों एक दूसरे से अलग हो सके ही नहीं, ऐसी सिचुएशन से उसको कंस्ट्रक्ट किया और मशीन को ऐसे फिट किया है कि वो दोनों अलग हो ही नहीं सकते। और सपोज, तो इन दैट केस आई हैव लेट आउट द बिल्डिंग, ओके, बिल्डिंग along with the machine, now both are not separable, so there are two possibility। अगर ये बिल्डिंग को लेट आउट करना ही मेरा बिजनेस है, सपोज मेरे पास बहुत सारी बिल्डिंग है और उसे ऐसे ही मशीन के साथ लेट आउट करना मेरा बिजनेस है, तो इट इज टैक्सेबल अंडर दैट पीजीबीपी। लेकिन मेरा वो बिजनेस नहीं है, सपोज मैं पहले फैक्ट्री चलाता था, अभी नहीं चला रहा हूँ, मैंने बंद कर दिया फैक्ट्री, किसी को किराए पे दे दिया, एंड नाउ आई हैव लेट आउट दैट along with my plant machinery and furniture, and if the rent is arise, then that rent is always taxable under the head income from other sources, if it is not taxed under the PGBP। तो डिपेंड करता है कि भाई उसको लेट आउट करना आपका बिजनेस है या नहीं। अगर वो लेट आउट करना आपका बिजनेस नहीं है, तो दैट इनकम विल बी ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. ओके, अगर वो पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं हुआ तो इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. नाउ द नेक्स्ट एंड द मेन पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इज दिस गिफ्ट. ओके, गिफ्ट खत्म होते ही हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है. ओके, तो गिफ्ट का पॉइंट थोड़ा लंबा भी है. ओके, और हमें अच्छे से समझना भी है. ओके, then after the gift there are very few points that we are supposed to discuss. Okay, so let us understand the provisions related to gift. Okay, so let us discuss the provision related to gift जो है, this is my target for today's lecture कि इसको आज मुझे complete करना है. फिर बाकी के 2 lecture में we will complete this chapter. Okay, so let us discuss the gift. So suppose if you receive a gift. Okay, तो देखो आपको गिफ्ट मिलती है तो गिफ्ट तो 3 तरीके से पॉसिबल है. आइदर यू कैन रिसीव द गिफ्ट इन मनी. ओके, तो मनी मे बी आइदर बाय कैश, बाय चेक, बाय ड्राफ्ट. ओके, एनी फॉर्म ऑफ मनी you may have received. Or suppose if you receive the movable property as a gift, then these 8 items fall under the category of movable asset. Or if you receive the immovable property as a gift, then these 3 items, land, building and land and building, these 3 items fall under the category of immovable property. ठीक है. Now suppose if you receive all, any of these items, okay, then it is as a gift. Okay, then it is taxable. देखो, before we discuss this from the material, let us understand this concept कि अगर गिफ्ट किसको कहोगे. Suppose if you receive anything without consideration, कि आपने एक भी रुपया नहीं पे किया और आपको कुछ मिला. ओके, इफ यू रिसीव्ड एनीथिंग विदाउट कंसिडरेशन, ओके, देन दिस इज अ गिफ्ट. ओके, हमने कई पण वस्तु मफतમાં મળે तो that is a gift. But see, sometimes if you receive something for a consideration, if you pay the consideration but which is less than fair market value, अगर फेयर मार्केट वैल्यू से कम प्राइस में भी आपको कुछ मिलता है, then that is also a gift. Like suppose, let us understand कि suppose one of my friend is having the jewelry shop and he is selling the ज्वेलरी, और मुझे उसके यहाँ से एक गोल्ड चेन पसंद आई जिसकी मार्केट वैल्यू है 1 लाख रुपया. लेकिन वो मेरे फ्रेंड की शॉप है और मैं खरीदने गया, बोला हेमंत भाई तमें 70,000 आपसे. मतलब देखो, यहाँ पे आई एम रिसीविंग जिसकी मार्केट वैल्यू 1 लाख है, वो चीज मुझे 70 में मिल रही है. तो यहाँ पे भी जो मेरे 30,000 रुपीज बच जाते हैं, दिस इज ऑल्सो अ गिफ्ट. तो गिफ्ट मीन्स व्हाट? इफ यू रिसीव एनीथिंग without consideration, that is also a gift. Or if you receive anything for a consideration which is less than fair market value, fair market value से कम प्राइस पे अगर आपको गिफ्ट मिलती है तो उसको भी हम गिफ्ट कहेंगे. तो गिफ्ट कैन बी ऑफ 2 टाइप. इट मे बी विदाउट कंसिडरेशन और इट मे बी फॉर द मार्केट which can be a less than fair market value. Okay, fair market value से कम प्राइस से आपको कुछ मिलता है, then that is also treated as a gift. Okay, now see, in this section 56 of this income tax act, these provisions related to gift are classified into 3 categories. कि आपको या तो गिफ्ट में क्या मिल सकता है, यू कैन रिसीव दी कैश एज ए गिफ्ट. ओके, या तो फिर आपको गिफ्ट में क्या मिल सकता है, यू कैन रिसीव दी मूवेबल प्रॉपर्टी एज ए गिफ्ट. और थर्ड, यू कैन रिसीव दी immovable property as a gift. ओके, अभी आपको देखो, ये तीनों के टैक्सेबिलिटी के प्रोविजंस और टैक्स पॉइंट अलग अलग है, इसीलिए ये तीनों को अलग अलग आइडेंटिफाई कर दिया गया है. ठीक है, ये तीनों को अलग अलग क्यों रखा है कि देखो कि इफ यू रिसीव द गिफ्ट इन अ कैश तो उसकी टैक्स ट्रीटमेंट डिफरेंट है. और सपोज इफ यू रिसीव दी मूवेबल प्रॉपर्टी, उसकी टैक्स ट्रीटमेंट डिफरेंट और डिफरेंटली करनी है. और इमूवेबल प्रॉपर्टी के प्रोविजन भी हमें डिफरेंटली पढ़ने हैं. मतलब तीनों ऑल टुगेदर एक दूसरे से अलग है. ठीक है, इफ यू रिसीव द कैश एज अ गिफ्ट
the provisions are different. If you receive the movable property as a gift, the provisions are different. और if you receive the immovable property as a gift, provisions are different. तो ये गिफ्ट के प्रोविजन हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे. ये सी प्रोविजन रिलेटेड टू गिफ्ट इफ यू हैव रिसीव्ड द गिफ्ट एज अ कैश. कैश में अगर आपने गिफ्ट ली है तो क्या टैक्स ट्रीटमेंट है. अगर मूवेबल प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट में मिली है तो क्या टैक्स ट्रीटमेंट है. और इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपको गिफ्ट में मिली है तो क्या टैक्स ट्रीटमेंट है, वो हमें समझना. ठीक है. तो 3 पार्ट में हम इसको पढ़ेंगे. तो पहले हम वी विल स्टार्ट विद द कैश. बट सी बिफोर वी स्टार्ट विद द कैश, लेट अस अंडरस्टैंड दैट व्हिच गिफ्ट्स आर एग्जम्प्टेड. पहले ये समझ लेते हैं कि कौन सी गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होती. देखो कि व्हिच गिफ्ट्स आर एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स. तो देखो ये तीनों केस में अगर ये कैश है या तो फिर आपको मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिलती है या तो फिर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिलती है. ओके. एक तो सिंपल सा पहले आप समझ लो कि कैश में गिफ्ट मिली आपको, तो जो कैश में आपको गिफ्ट मिलती है हर बार वो टैक्सेबल नहीं होती. ओके. लेकिन आपको अलग अलग लोगों से गिफ्ट मिली. सपोज मिस्टर एक्स से मुझे 25,000 रुपये का गिफ्ट मिला. सिर्फ पूरे साल में 25,000 का ही गिफ्ट मुझे मिस्टर एक्स से मिला. दूसरा कोई गिफ्ट मिला है तो दिस गिफ्ट इज टैक्सेबल और नॉट टैक्सेबल. सो आई एम सेइंग दैट इट इज नॉट टैक्सेबल. क्यों? मैं आपको लॉजिक बताता हूँ. कि गिफ्ट रिसीव्ड इन अ कैश इज taxable only if the value of the gift received from the different person is exceeding ₹50,000. 50,000 से ज्यादा अगर मुझे गिफ्ट का अमाउंट मिलता है तो गिफ्ट टैक्सेबल होगी. ओके. मतलब यहाँ पे भी ऐसा है. यहाँ पे भी अगर मुझे मूवेबल प्रॉपर्टी अलग अलग गिफ्ट में मिलती है तो मूवेबल प्रॉपर्टी अलग से सेपरेट लिमिट है 50,000 की. अगर मुझे मूवेबल प्रॉपर्टी मिली तो मुझे जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिले उसका मुझे मार्केट वैल्यू का टोटल करना है. इफ द मार्केट वैल्यू इज एक्सीडिंग ₹50,000 देन द मार्केट वैल्यू ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी विल बी टैक्सेबल. वैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी में ऐसा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखी जाती है और वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो ये टैक्सेबल है. अगर मुझे समझ लो 25,000 का कैश मिला या तो फिर 25,000 की इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली या 25,000 की मूवेबल मिली, 25,000 की मूवेबल मिली. तो देखो तीनों में मेरी लिमिट 50,000 से क्रॉस नहीं होती. तो ये भी टैक्सेबल नहीं होगा, ये भी नहीं टैक्सेबल होगा, ये भी नहीं होगा. आप ऐसा मत सोचना कि सर आम टोटल ना थे 25, 25, 25, 75. नो. फॉर ईच कैटेगरी देयर इज अ सेपरेट 50,000 लिमिट. समझ में आया आपको? कैश का 50,000 का लिमिट अलग है, मूवेबल प्रॉपर्टी का 50,000 का लिमिट अलग है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का 50,000 का लिमिट अलग है. अगर यहाँ कैश मुझे 50,000 से ज्यादा मिली है तो ही कैश टैक्सेबल होगी. अगर मूवेबल प्रॉपर्टी 50,000 से ज्यादा मिली है तो ही टैक्सेबल होगी. इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर 50,000 से ज्यादा मिली है तो ही टैक्सेबल होगी. तो तीनों की लिमिट अलग है. मतलब एक चीज आप का लिमिट कैलकुलेट करते हैं. सर हाँ आपकी वॉइस कट हो गई थी. हाँ सर. हाँ सर. सबके केस में ऐसा हुआ. हाँ सर. हाँ हाँ सर. यस सर. यस सर. समझ में आया नहीं आया ये वाला? यस सर. ये समझा आपने? ये अलग अलग लिमिट है ऐसा मैंने बताया, वो समझ में आया? यस नहीं सर. समझ पड़ा? यस सर. यस बस इतना ही बताया मैंने. ठीक है बेटा. सो ना सो बेटा ये दिस यू हैव लर्न और नॉट? I have explained the Yes, different sir. limits. Yes That's sir. all, not. So that is only I have explained you. So from this one thing is very much clear. That see if you receive the gift, okay, either it is a cash or it is a movable property or it is a immovable property. But in any case, okay, for all three the limits are separate. If I have received, अगर किसी ने नहीं सुना तो समझ लो ये कैश का 50,000 का लिमिट अलग है. अगर मुझे कैश मिला और इफ द कैश इज एक्सीड्स 50,000 देन इट इज टैक्सेबल. सपोज आई हैव रिसीव्ड दी 50,000 मूवेबल प्रॉपर्टी. अगर मुझे 50,000 से ज्यादा मिली है तो ही मूवेबल प्रॉपर्टी टैक्सेबल होगी.
Same way, if I have received the immovable property and if the limit cross 50,000, then and then it will be taxable, otherwise it is not taxable. So this you should keep in your mind that for all three the 50,000 limit is separate. Okay, तो एक चीज आपको ये समझ में आ गया, अभी सुनाई दे रहा है ना? हेलो? Yes, Yes, yes. sir. Yes, Yes, sir. All three limits are different. Yes. यहाँ से एक चीज आपको समझ में आ गई कि कोई भी गिफ्ट मिलती है, whether it is a movable property or it is a cash or it is a immovable property, तीनों में लिमिट जो है वो 50,000 से ज्यादा क्रॉस होगी तो ही मुझे टैक्स भरना है. ओके, ये तो समझ में आया आपको. और हम उसको अलग अलग कैटेगरी सेपरेटली समझते हैं, लेकिन उससे पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हिच गिफ्ट्स आर एग्जम्प्ट. तो व्हाइल कैलकुलेटिंग द मॉनेटरी लिमिट ऑफ 50,000, मतलब देखो हम 50,000 अलग अलग लोगों से मिला हुआ कैलकुलेट करते हैं. Then in any of the categories, any sum of money or property received from following person shall not be considered. એટલે 50,000 ની લિમિટ જ્યારે ગણતા હોય ત્યારે આ લોકો પાસેથી જ્યારે મળ્યા હોય પૈસા કે મૂવેબલ પ્રોપર્ટી કે ઇમૂવેબલ પ્રોપર્ટી, उसको कंसीडर नहीं करना है क्योंकि इन लोगों से मिला हुआ पैसा एग्जम्प्ट है. ओके, सो which gifts are exempt? Okay, whether it is a movable, immovable or cash. But if you have received, देखो, if you have received the money और प्रॉपर्टी फ्रॉम अ रिलेटिव, तो अगर आपको रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है तो दैट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, इट इज नॉट टैक्सेबल एट ऑल. ओके, अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा वो इज रिलेटिव, वो हम बाद में अभी थोड़ी देर में समझते हैं, लेकिन अभी आप इतना याद रखिए कि इफ यू रिसीव एनी मनी और प्रॉपर्टी मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी, इफ यू रिसीव इट फ्रॉम द रिलेटिव इट इज नॉट टैक्सेबल, इट इज एग्जम्प्ट. अंडरस्टूड? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now suppose if you Yes. receive the money or property on the occasion of marriage of an individual. Okay, suppose on your marriage, if you receive the gift, okay, on your marriage if you receive the gift on occasion of marriage of an individual, if the individual receives the gift, then that gift is also not taxable. Okay, on if you receive the money or property on occasion of your marriage, आपके मैरिज पे, ओके, वो पहले वरी फिर कितने भी नंबर का मैरिज हो, फर्स्ट मैरिज हो, सेकंड हो, थर्ड हो, दैट डजंट मैटर. बट सी इफ यू रिसीव द गिफ्ट ऑन ओकेजन ऑफ योर मैरिज, आपके खुद के मैरिज पे आपको अगर किसी से भी गिफ्ट मिलती है કોઈના પણ પાસેથી, પહેલા પોઈન્ટમાં શું કીધું कि रिलेटिव पासेથી गमे ત્યારે गिफ्ट मिले, मैरिज हो या ना हो, बट आपको गिफ्ट मिलती है रिलेटिव से तो रिलेटिव से मिला हुआ गिफ्ट एग्जम्प्ट रहता है. देन वी हैव डिस्कस दैट इफ यू रिसीव द गिफ्ट ऑन ओकेजन ऑफ योर ओन मैरिज, आपके खुद के मैरिज के ओकेजन पे अगर आपको गिफ्ट मिलती है तो वो गिफ्ट एग्जम्प्ट होती है. एंड दैट इज व्हाई सी दिस सेलिब्रिटीज यू कैन सी इन देयर लाइफ 2 or 3 times मैरिजेस आर टेकिंग प्लेस. ओके, समझ में आ रहा है कि ये सेलिब्रिटीज के मैरिजेस का मतलब लाइव टेलीकास्ट भी होता है, उनको किसने क्या गिफ्ट दिया वो भी दिखाया जाता है, और इसका प्रचार इसीलिए किया जाता है कि उसने वो जो रिसीव किया दैट इज रिसीव्ड ऑन ओकेजन ऑफ योर इन देयर मैरिज. एंड यू मे बी थिंकिंग दैट दिस पर्सन हैज given the divorce and getting married again with another girl or another person. So this is all planned, okay, because of this provision that they are receiving these gifts, okay, on occasion of their marriage and they make it tax exempt. Okay, so if they have to receive some money or some property from someone and if they feel that if I will receive it would become a taxable, it would be very high tax, and in that case they do the tax planning by arranging a second marriage, and this happens in the real life also. Okay, so suppose if you receive the gift on occasion of your marriage, it is exempt. Okay, same way suppose if you receive, in every point the first two word money or property, matlab if you receive the money that is also exempt, if you receive the movable or immovable property that is also exempt. So if you receive the money or property by way of will or inheritance, अगर आपको will और inheritance में कोई गिफ्ट मिलती है, okay, so will और inheritance मतलब आपको मतलब आपके फादर ने या पेरेंट्स ने आपको गिफ्ट दिया, लेकिन बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस विल करके, ओके, विल करके गए कि भाई मेरे मरने के बाद मेरी सभी प्रॉपर्टी मेरे बेटे की होगी, तो दैट इज कॉल्ड विल. अगर उसने विल नहीं किया और डायरेक्ट सपोज समझ लो बाय ऑटोमेटिक भी आपको मिलने ही वाला है, ओके, तो दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस. तो ऐसे अगर आपको कुछ मिलता है, इफ यू रिसीव एनी मनी और एनी
property by way of inheritance, that is exempt. Okay, same way, suppose money or property received on contemplation of the death of payer. Okay, suppose the payer मतलब जो पैसा देने वाला है आपको, उसने ऐसा करार किया हुआ है कि मेरे मतलब देखो विल और इनहेरिटेंस में कौन देता है आपको, आपके पेरेंट्स देते हैं, उस पर आपका हक है, लेकिन कोई थर्ड पार्टी XYZ है, ओके, जो आपका रिलेटिव नहीं है, जिसकी प्रॉपर्टी पे आपका लीगली कोई हक नहीं बनता है, और ऐसा पर्सन मरते टाइम पे ऐसा बोल के गया है कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी इसको दे देना, तो दिस इज कॉल्ड कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ पेयर. तो सपोज इफ यू रिसीव एनी मनी और एनी प्रॉपर्टी ऑन कंटेम्पलेशन ऑफ द डेथ ऑफ द पेयर, then that is also not taxable. that वो 50,000 की लिमिट के कैलकुलेशन में उसको नहीं लेना है. ओके, सेम वे सपोज इफ यू रिसीव एनी मनी और प्रॉपर्टी फ्रॉम द लोकल अथॉरिटी, लाइक सपोज वडोदरा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जैसा कोई लोकल अथॉरिटी है, ओके, और वो लोकल अथॉरिटी आपको गिफ्ट में कुछ देती है, ओके, तो दैट इज एग्जाम. लाइक लोकल अथॉरिटी होती है, प्लॉट ऑफ लैंड आपको दे देती है कि यहाँ તમે તમારી દુકાન ખોલો, તમને મફતમાં પ્લોટ આપે. So if you receive this kind of money or property from the local authority, it is treated as a gift and it is not taxable. Same way, देखो, by an individual from any person, देखो this अगर individual कोई भी person से gift is in respect of any expenditure actually incurred by him on his medical treatment or treatment of his member for his illness related to COVID-19 और subject to prescribed condition. नहीं, ये कोविड के टाइम पे आया था और कोविड के टाइम से प्रोविजन कंटिन्यू रखा है कि भाई किसी को आपके घर में आपके फैमिली मेंबर को या आपको खुद को कोविड हो गया है, उसकी ट्रीटमेंट कराने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो लोगों ने इकट्ठा कर करके आपको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसे दिए. ओके, लाइक सपोज आपका 10 लाख खर्चा हुआ तो 10 लाख लोगों ने दिए आपको. नाउ सी दैट मनी रिसीव्ड, इट इज अ गिफ्ट. बट सी यहाँ पे ये प्रोविजन क्या कहता है कि सपोज इफ यू हैव रिसीव्ड द मनी एज ए इंडिविजुअल, ओके, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड और कोविड, then see whatever amount you are receiving, that is exempt, it is not taxable. Okay, same way by the member of the family of the deceased person. Okay, अगर देखो अगर कोई पर्सन की डेथ हो जाती है और उसके फैमिली मेंबर को एम्प्लॉयर से कुछ भी पैसा मिलता है, सपोज समझ लो कि मिस्टर एक्स वाज वर्किंग इन XYZ कंपनी और उसकी डेथ हो गई और उसके एम्प्लॉयर ने 2 लाख रुपया दिया कि लो तुम्हारी फैमिली ने चलाओगे, तो अगर डिसीज पर्सन की फैमिली को अगर एम्प्लॉयर कुछ पैसा देता है तो दैट इज ऑल्सो नॉट काउंटेड फॉर कैलकुलेटिंग दिस लिमिट. और देखो फ्रॉम एनी अदर पर्सन एग्रीगेटिंग अप टू ₹10 लाख, अगर किसी की डेथ हो गई, नहीं अमुक लोगों ने कोई नानी उम्र डेथ થઈ જાય तो आजू बाजू वाला के रिलेटिव पैसा आप ही जाए, तो वो पैसा भी मिलता है कितना तक, 10 लाख तक. एम्प्लॉयर से मिलता है, कोई लिमिट नहीं है. लेकिन अगर एम्प्लॉयर के अलावा कोई डिसीज पर्सन है, उसकी डेथ हो जाती है और उस टाइम पे कोई पैसा देके जाता है 10 लाख तक, तो दैट इज ऑल्सो एग्जाम. बट कब, देखो दिस कंडीशंस आर दैट कि द कोज ऑफ डेथ ऑफ सच पर्सन इज COVID-19 से रिलेटेड कोई बीमारी हुई और वो मर गया, ठीक है, बाकी सब केस में नहीं. और पेमेंट इज रिसीव्ड विद इन 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ ऑफ सच पर्सन एंड एनी अदर प्रिस्क्राइब कंडीशन. मतलब देखो ये जो पॉइंट है एनी मेंबर, वो कोविड से रिलेटेड, मतलब पॉइंट नंबर 6 एंड पॉइंट नंबर 7 बोथ आर रिलेटेड टू दी कोविड. ओके, कि कोविड में आप बीमार हुआ, आपकी फैमिली मेंबर कोई बीमार हुआ और उस टाइम पे आपको पैसा मिला, तो दैट इज नॉट ट्रीटेड एज अ गिफ्ट. सेम वे अगर फैमिली मेंबर की डेथ हो गई और वो डिसीज पर्सन के फैमिली मेंबर को उसका एम्प्लॉयर जितना भी पैसा देता है एंटायर इज एग्जाम्प्ट. और अगर एम्प्लॉयर नहीं और थर्ड पार्टी देती है दैट इज ऑल्सो एग्जाम्प्ट. बट व्हाट इज द कंडीशन, death should be caused by the COVID-19 or that payment is made by that person to the family member of that person who is died. उसके family member को within 12 months from the date of death, if the money is given, then and then it is exempt, otherwise it is not exempt. Okay, here family means what? देखो family में कौन कौन आता है कि family here means spouse, children of an individual. मतलब मिस्टर एक्स की डेथ हो गई तो उसके वाइफ को और बच्चों को पैसा मिलता है, या तो फिर मिसेस एक्स की डेथ हो गई तो स्पाउस का मतलब हस्बैंड भी होता है, तो उसके हस्बैंड को या बच्चों को पैसा मिलता है, या तो फिर उसके पेरेंट को, ब्रदर और सिस्टर को पैसे मिलते हैं, हु आर ओनली डिपेंडेंट ऑन हिम, देन दैट इज कॉल्ड फैमिली. वाह, जो आपने बताने बताया हमारा स्टूडेंट्स ने. ओके, हाँ, जो भाई मारी छोकरी आज तैयार થઈ છે, એને બહુ શોખ છે કે બધા જોવે એને. માય કેન યુ સી માય ડોટર? હેલો,
Yes, yeah. sir. No, sir. Now, No, now sir. uh, Yes, just a sir. minute. Just a minute. Let me do it full screen. I think just a minute. હવે દેખાય છે બેટા કે નથી દેખાતું? તને દેખાય છે? No, sir. हाँ, sir. No, Can you no, see? sir. No? Okay, No, just a minute. एक कर देखो बेटा, कैमरा तो मैंने ऑन किया है. ओके, now probably can see. Now can you see beta? Yes, sir. Yes. Yes, sir. yes, sir. Hi कर. મસ્ત લાગે છે. So cute. તો જો વિડિયો તને કીધું ને મસ્ત લાગે છે, બસ ચલાવે છે ને. સર નામ શું છે એનું? બાય બધાને કહી દે. Okay, actually today I am taking the lecture from my home. Okay. Now, can you see the screen, beta? Hello. Yes, sir. Okay. Yes, Yes, sir. sir. Think about that No, point. sir. No, can you see the screen? Hello. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Just continue, beta. अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो एक बार एग्जिट होके वापिस एंटर करो, आप देख सकोगे स्क्रीन. ओके, तो सपोज इफ यू रिसीव द, देखो आपके घर में कोई बीमार हुआ और उस टाइम पे कोविड के टाइम पे बीमार हुआ और पैसे मिले, दैट इज नॉट ट्रीटेड एज गिफ्ट. अगर किसी की डेथ हो गई और उसके एम्प्लॉयर ने विदाउट लिमिट कितना भी पैसा दिया, नॉट काउंटेड, और अगर अदर पर्सन से मिलता है 10 लाख तक, दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रीटेड एज अ गिफ्ट. ओके, और फैमिली मेंबर यहाँ क्या किसको कहेंगे? स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर, इसमें से किसी को भी पैसा मिला है तो दैट इज नॉट टैक्सेबल. ओके, so we are discussing which gifts are not taxable. Okay, so suppose point number 8, if you receive the gift from any fund, foundation, university or educational institution or hospital or other medical institution or trust referred under section 10 subsection 23c, provided that it is not received from any person referred under section 13 subsection 3, you ignore this, but you just remember, अभी इतना याद रखिए कि अगर आपने कोई फंड, फाउंडेशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ओके, जो सेक्शन 10 सबसेक्शन 23C, मतलब सेक्शन 10 सबसेक्शन 23C में कौन सी हॉस्पिटल, ट्रस्ट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आते हैं कि वो इनकम इज एग्जाम, ओके, जो ATG में रजिस्टर होते हैं और उसके बाद 12AA में रजिस्टर होते हैं, वैसे ट्रस्ट और फंड और फाउंडेशन जो लोगों को हेल्प करने का काम करते हैं, और ऐसे फंड, फाउंडेशन से या यूनिवर्सिटी से, मेडिकल इंस्टीट्यूशन से, हॉस्पिटल से, इफ यू रिसीव्ड एनी हेल्प, देन दैट इज नॉट टैक्सेबल. तो यहाँ से अगर आपने कोई गिफ्ट मिली है तो टैक्सेबल नहीं होगी. पॉइंट नंबर 9, इफ यू रिसीव a gift from any trust or institution registered under section 12A, 12AA, 12AB, provided that it is not received from the person referred under section 13 subsection 3. So person referred under section 13 subsection 3, let us discuss यहाँ क्या होता है. Just a minute. बस देना चाहिए, आवाज ना करो. Section 13 subsection 3. Just a minute.
ओके देखो 13 सबसेक्शन 3 में कौन आता है? deals the taxation of the income received or accrued outside India. This section specifies the circumstances. Okay, persons refer under section 3 subsection 13 subsection 3 में कौन आता है? You can see जो आउटसाइड इंडिया वाला है वो। अरे वाह, जस्ट the following persons are considered as specified person: any author or founder trust, person who has made donation more than 50,000 rupees, trustee or manager or relative or founder or member, or any concern in which the above person has a substantial interest. मतलब देखो इतने लोगों से अगर आपको मिला है तो वो कंसीडर नहीं होगा कि अगर कोई ट्रस्ट का ओनर है, ट्रस्ट आपको नहीं देता है लेकिन ट्रस्ट का ओनर देता है, या तो फिर ट्रस्ट नहीं देता लेकिन ट्रस्ट के अंदर जिसने 50,000 से ज्यादा डोनेट दिए वो आपको गिफ्ट दे रहा है, या तो फिर ट्रस्टी दे रहा है, या तो फिर ट्रस्ट का जो फाउंडर है उसका कोई मेंबर और मैनेजर आपको दे रहा है, तो इन लोगों से मिला है तो टैक्सेबल होगा। लेकिन आपको कब टैक्सेबल नहीं होगा? व्हेन यू रिसीव द गिफ्ट डायरेक्टली फ्रॉम द ट्रस्ट। तो ट्रस्ट के ओनर से, ट्रस्ट के डोनर से उससे पैसा मिलता है डायरेक्ट तो नॉट टैक्स, दैट इज टैक्सेबल। वो कब नॉट टैक्सेबल होगा? if you receive the gift from the any trust or institution which is referred under section 12AA। देखो 12AA, 12A, 12AB में कौन से ट्रस्ट होते हैं जिसकी इनकम एग्जम्प्ट होती है, और वो ऐसे ट्रस्ट है जो या तो पब्लिक के हेल्थ के लिए या तो फिर रिलीजियन मतलब के डेवलपमेंट के लिए ट्रस्ट बने होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ट्रस्ट होते हैं और वहां से अगर आपको कोई डोनेशन मिलता है तो दैट इज एग्जाम। लेकिन ट्रस्ट का जो ट्रस्टी है उससे डोनेशन मिला टैक्सेबल, वो 13 सेक्शन 3 में आएगा। ट्रस्ट का कोई मैनेजर है, कोई डोनर है, वो आपको डायरेक्टली पैसा देता है तो दैट विल बी टैक्सेबल। सेम वे फ्रॉम द इंडिविजुअल, देखो फ्रॉम एन इंडिविजुअल बाय ट्रस्ट क्रिएटेड और एस्टेब्लिश सोनली फॉर द बेनिफिट ऑफ द रिलेटिव ऑफ द इंडिविजुअल। हाँ लेकिन देखो कुछ ट्रस्ट ऐसे क्रिएट किए जाते हैं उसको प्राइवेट ट्रस्ट बोलते हैं। अगर प्राइवेट ट्रस्ट में क्या होता है कि आई हैव क्रिएटेड द ट्रस्ट, लेकिन ट्रस्ट के अंदर मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टी दे दी और फिर बोला कि ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है उसमें से जो भी इनकम आती है उससे सिर्फ मेरे बच्चों का बेनिफिट होना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड प्राइवेट ट्रस्ट। तो ट्रस्ट इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द रिलेटिव, और रिलेटिव को ट्रस्ट से बेनिफिट मिल रहा है तो वो टैक्सेबल होगा, यहाँ एग्जम्प्ट नहीं होगा। ओके सेम वे सपोज देखो वी आर डिस्कसिंग दैट विच income are not taxable under the trust. So by way of distribution at the time of total or partition covered under section 47, देखो HUF जो होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अगर उसका पार्टीशन होता है और वो पार्टीशन के टाइम पे अगर आप एज ए मेंबर ऑफ HUF, सपोज एक बड़ा HUF फैमिली है और उसके मेंबर को अगर HUF का पार्टीशन हुआ उस टाइम पे अगर पैसा मिला so that is treated as a gift, but it is not taxable under this section. The same way by way of transaction in nature of amalgamation merger, देखो amalgamation merger के टाइम पे अगर आपको कुछ मिलता है तो that is not taxable, उसको ट्रांसफर ही नहीं माना जाता। और see from such class of person और subject to such condition as may be prescribed, ऐसा कुछ प्रिस्क्राइब नहीं है। आपको ये 12 पॉइंट ध्यान रखने, और 12 में से पहले 7-8 पॉइंट that is most important कि when the gift is not taxable. If you receive any money or property from relative, taxable नहीं होगा। Okay, who is relative that we will going to discuss right now. Okay, तो relative से मिला taxable नहीं है, आपके मैरिज पे मिला taxable नहीं है, आपको will और inheritance से मिला not taxable। अगर किसी ने डेथ के टाइम पे कंटेम्पलेट किया कि मेरी प्रॉपर्टी इसको देना, और if you receive the gift not taxable. Okay, suppose if you receive the gift from the local authority not taxable. Suppose the gift is received, the gift is received from a person, but see आपको आपके
फैमिली में कोई बीमार है और कोविड के कारण बीमार हुआ और कोई उसके टाइम पे कुछ पैसा मिलता है, नॉट टैक्सेबल। कोविड के टाइम पे फैमिली मेंबर में से किसी की डेथ हुई और दूसरे फैमिली मेंबर को एम्प्लॉयर से पैसा मिलता है, कोई भी अमाउंट नॉट टैक्सेबल, दूसरे किसी और से मिलता है तो 10 लाख तक नॉट टैक्सेबल, उसके ऊपर होगा टैक्सेबल, उसके ऊपर होगा इट वुड बी टैक्सेबल। ठीक है। देन वी हैव डिस्कस के फंड, फाउंडेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से मिलता है। ओके, जो चैरिटी के लिए बने हैं ट्रस्ट और वहां से मिलता है पैसा, एग्जम्प्ट है। ऐसे दूसरे भी ट्रस्ट है जो 12AA में रजिस्टर्ड है, तो ऐसे ट्रस्ट से भी मिलता है, उससे मिला है तो भी एग्जम्प्ट है। और देखो अगर जस्ट a minute. Or suppose from the individual, देखो from the individual by a trust created or established solely for the benefit of the relative of the individual। देखो ये भी exempt है, मैंने आपको गलत बताया, ये taxable होगा, ये भी exempt है। अगर suppose I have created the trust for the benefit of my relative and my relative are receiving the money from the trust which is created for my benefit, my relatives benefit, and if they are receiving, that is also not taxable। Point number 10 बोलता है not taxable। पॉइंट नंबर 11 कहता है कि भाई अगर आपको आप एचयूएफ हो और एचयूएफ का पार्टीशन होता है और उस टाइम पे कुछ मिलता है, नॉट टैक्सेबल। अमालगमेशन मर्जर के टाइम पे अगर कुछ होता है मिलता है, दैट इज आल्सो नॉट टैक्सेबल। तो देखो इतने टाइप की गिफ्ट आपको मिलती है, इतनी सिचुएशन में गिफ्ट मिलती है, इट इज एग्जाम फ्रॉम टैक्स। ओके, नाउ सी द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हियर इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव। क्योंकि आपको मैंने पहला पॉइंट यहाँ पे बताया कि भाई if you receive, if you are an individual and as an individual if you are receiving the gift, okay, and if you receive the gift from relative then that is exempt from tax। okay, तो who is relative, देखो relative का definition यहाँ दिया हुआ है, तो who is relative, let us understand। तो ये यहाँ से चालू करते हैं कि मिस्टर ए है, उसके लिए कौन कौन रिलेटिव कहा जाएगा। तो सबसे पहला रिलेटिव मिस्टर ए के लिए उसकी स्पाउस, मतलब उसकी वाइफ, ये सबसे मतलब स्पाउस ऑफ द रिलेटिव इज अ स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल इज अ रिलेटिव। तो सबसे पहलो रिलेटिव है नो जो जीवन साथी थे, स्पाउस, वो रिलेटिव हुआ। फिर दूसरा कौन रिलेटिव होगा, आप ये मिस्टर ए है तो मिस्टर ए के लिए उसका ब्रदर और उसकी सिस्टर, वो मिस्टर ए के लिए रिलेटिव है। नॉट ओनली हिज ओन ब्रदर एंड सिस्टर, उसके स्पाउस के भी ब्रदर और सिस्टर है। सपोज मैं हूं तो मेरे ब्रदर और सिस्टर तो मेरे रिलेटिव है ही है, लेकिन मेरी वाइफ के ब्रदर और सिस्टर भी मेरे रिलेटिव है। ठीक है, तो इतना समझ में आया। अभी हम थोड़ा ऊपर जाते हैं कि आपके फादर और मदर, मतलब आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपके रिलेटिव है, और फादर के भी ब्रदर और सिस्टर आपके रिलेटिव कहे जाएंगे, मदर के भी ब्रदर और सिस्टर आपके रिलेटिव कहे जाएंगे। नॉट ओनली दैट, आपके वाइफ के या आपके जो स्पाउस हैं उसके ब्रदर और सिस्टर, उसके पेरेंट्स वो आपके रिलेटिव कहे जाएंगे। और देखो इसके ब्रदर और सिस्टर यहाँ पे नहीं लिखा है। स्पाउस में क्या है, आपके स्पाउस के सिर्फ पेरेंट्स आपके रिलेटिव है, अब उसके पेरेंट के ब्रदर और सिस्टर रिलेटिव नहीं। आपके पेरेंट के ब्रदर और सिस्टर रिलेटिव है, तुम्हारा मामा के फोई के मासी, अब तक तुम्हारा रिलेटिव केवा से। बट सी स्पाउस के मामा, मासी, बुआ, चाचा वो आपके रिलेटिव नहीं कहे जाएंगे, लेकिन हाँ स्पाउस के पेरेंट रिलेटिव कहे जाएंगे। स्पाउस के पेरेंट ग्रैंड पेरेंट है, वो भी आपके लिए रिलेटिव कहे जाएंगे। आपके खुद के ग्रैंड पेरेंट है, दे विल बी आल्सो ट्रीटेड एज ए रिलेटिव। ये ऊपर का हमने देखा। ठीक है, तो देखो कौन कौन रिलेटिव कहा जाएगा। मिस्टर ए है तो उसकी वाइफ उसके लिए रिलेटिव, मिस्टर ए के खुद के ब्रदर और सिस्टर, मिसिस ए के ब्रदर और सिस्टर, मिस्टर ए के पेरेंट्स के ब्रदर और सिस्टर, और पेरेंट्स के पेरेंट्स आर रिलेटिव, और मिसिस ए के जो पेरेंट्स है वही रिलेटिव कहे जाएंगे। पूरा हम समझ रहे हैं मिस्टर ए के एंगल से कि मिस्टर ए की वाइफ मिसिस ए है, उसके ब्रदर, उसके फादर है, वो रिलेटिव कहे जाएंगे, मदर भी रिलेटिव कहे जाएंगे, फादर के फादर रिलेटिव कहे जाएंगे, लेकिन फादर के ब्रदर और सिस्टर और मदर के ब्रदर सिस्टर रिलेटिव नहीं कहे जाएंगे। ये हमने ऊपर का देखा। ठीक है, और देखो आपके स्पाउस के ब्रदर और सिस्टर है वो भी रिलेटिव है। अभी हम नीचे आते हैं तो देखो मिस्टर और मिसिस ए ये दोनों है, उसके चाइल्ड है,
मतलब या सन और डॉटर जो भी है दे आर रिलेटिव, और सन के भी मतलब इसके नीचे आते हैं, लेकिन सन का सन है और सन की डॉटर है, तो सन के जो डॉटर और सन है वो भी रिलेटिव है। हाँ, डॉटर के सन और डॉटर रिलेटिव नहीं कहे जाएंगे क्योंकि उसका मैरिज हो जाता है। तो ऑल दिस आर फॉल इन दी डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव। तो दिस आर दी रिलेटिव। हु इज रिलेटिव अंडरस्टूड? देखो मिस्टर ए खुद है, उसकी वाइफ उसकी रिलेटिव पहली, ओके। फिर मिस्टर ए के ब्रदर और सिस्टर उसके रिलेटिव, मिसिस ए के ब्रदर और सिस्टर रिलेटिव। ऊपर जाए तो मिस्टर ए के फादर मदर और उनके ब्रदर और सिस्टर रिलेटिव। फादर मदर के फादर मदर, तो फादर के फादर मदर, मदर के फादर मदर नहीं, देखो फादर के फादर मदर रिलेटिव है, मदर के फादर मदर रिलेटिव नहीं, लेकिन हाँ मदर के ब्रदर सिस्टर आपके रिलेटिव है, ठीक है। सेम वे स्पाउस है, उसके फादर मदर आपके रिलेटिव, उनके उसके फादर के फादर मदर वो भी रिलेटिव, मदर के फादर मदर रिलेटिव नहीं कहे जाएंगे, ओके। और जो स्पाउस है उसके ब्रदर और सिस्टर आपके रिलेटिव है, और मिस्टर ए है तो उसके सन और डॉटर, मिस्टर ए और मिसिस ए है तो दोनों के सन और डॉटर कॉमन है, तो दे आर रिलेटिव। और इनके भी अगर सन के सन और डॉटर है तो वो रिलेटिव कहे जाएंगे, ओके। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव, ठीक है। तो वी हैव डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव। और अगर रिलेटिव से गिफ्ट मिला तो नॉट टैक्सेबल, और इतने पूरे 13 पॉइंट आपसे मैंने डिस्कस किए, 15 पॉइंट 14 पॉइंट, तो इनसे भी गिफ्ट मिलता है तो द गिफ्ट इज नॉट टैक्सेबल। नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन द गिफ्ट, ओके। नाउ आपको मैंने बताया कि इफ यू रिसीव द गिफ्ट, मैंने आपको बताया कि ऑल 3 आर सेपरेट कैटेगरी, ओके। तो गिफ्ट यू कैन रिसीव बाय कैश। देखो गिफ्ट में कितनी पॉसिबिलिटी है, एक गिफ्ट आपको कैश में मिल सकती है, तो गिफ्ट कैश में मिली है तो कब टैक्सेबल होगी, तो गिफ्ट कैश में मिली है तो टैक्सेबल होगी। बट सी दिस इज द कंडीशन, यू कैन सी फॉर कैटेगरी 1, यहाँ पे कंडीशन है कि मनी और प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय द पर्सन विदाउट कंसिडरेशन और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन इज इनकम इफ इट इज नॉट फॉल इन द एग्जम्प्टेड कैटेगरी। मतलब आप समझो कि आपको मनी मिले हैं या तो फिर प्रॉपर्टी मिली है, वो टैक्सेबल होगा अगर वो एग्जम्प्ट में नहीं फॉल होता, ओके। नाउ द रिसिप्ट ऑफ सम ऑफ मनी और प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन शुड फॉल अंडर एनी ऑफ दिस 5 कैटेगरी। देखो यहाँ 5 कैटेगरी की गिफ्ट दी गई है और पांचों का हमें कैलकुलेशन अलग अलग करके देखना है। देखो उसमें पहला कैटेगरी है गिफ्ट इन कैश और बाय चेक और ड्राफ्ट। अगर आपको गिफ्ट मिलती है तो कैश में मिली, देखो कैश में क्या क्या आता है कि यू हैव रिसीव्ड द गिफ्ट इन कैश, देन देयर आर 3 पॉसिबिलिटी कि आपको प्योर कैश में मिला, या तो फिर आपको वो चेक से मिला, या तो फिर ड्राफ्ट से मिला, ये तीनों कैश ही है। और देखो कैश और दिस इंक्लूड्स द फॉरेन करेंसी आल्सो, तो डोंट गेट कंफ्यूज, द कैश इज मींस इंडियन करेंसी, इट इंक्लूड्स द फॉरेन करेंसी आल्सो। तो अगर आपको ऐसी कोई भी कैश मिलती है किसी से भी तो कब टैक्सेबल होगी, तो यहाँ पे पॉइंट क्या कहता है, यू कैन रिफर दिस, इफ एग्रीगेट अमाउंट, यहाँ अंडरलाइन दिस वर्ड एग्रीगेट, if aggregate amount of the sum of money received by a person without consideration from one or more persons during the previous year exceeds the 50,000, then the whole of such aggregate value will be chargeable to tax। मतलब आपको कैश में गिफ्ट मिली है तो कैश के सभी ट्रांजेक्शन को सेपरेटली देखना है, और सभी ट्रांजेक्शन को आपको टोटल करना है, ओके। कैश के ट्रांजेक्शन आपको इसको मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी से अलग रखने हैं, और देखो कैश के जितने भी आपको कैश मिली है उसका आपको क्या करना है, यू आर सपोज टू डू द एग्रीगेट, एंड इफ द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ द कैश रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस पर्सन और पर्सन इफ इट एक्सीड्स ₹50,000 देन द एंटायर अमाउंट, 50,000 नहीं ऊपर नो नहीं, with what amount will be taxable, the entire amount will be taxable। Let us take one small example so you will get the clarity। कि समझ लो कि कोई एक मिस्टर ए है, ठीक है, समझ लो there is one person named मिस्टर ए, ओके। जस्ट a minute। हाँ चेतन भाई, हेलो, हाँ ના ફાઇલ થઈ ગયું છે, હજુ એ છે ને અપ્રૂવ નથી થયું, અપ્રૂવ થશે એટલે હું તમને જણાવીશ। अब पेंडिंग से अप्रूवल। तो सपोज समझ लो कि मिस्टर ए है और ये मिस्टर ए को अलग अलग तारीख को प्रीवियस ईयर, हमारा समझ लो ये
22-23 वाला प्रीवियस ईयर है। और इन दिस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर समझ लो मिस्टर ए को उसके फ्रेंड ने, उसका कोई फ्रेंड है और वो फ्रेंड ने ₹30,000 गिफ्टेड टू हिम, उसको 30,000 मिला। ओके, फिर मिस्टर ए है तो वो मिस्टर ए को उसके फादर ने 30,000 दिए। मिस्टर ए है उसको अपने मैरिज के ओकेजन पे 70,000 रुपीज ये प्रीवियस ईयर में मिले। मिस्टर ए है उसको लोकल अथॉरिटी ने 20,000 रुपया कुछ गिफ्ट दिया और मिस्टर ए है उसको कोई दूसरा फ्रेंड है और वो फ्रेंड से दूसरा 30,000 मिला। ओके, और आपको बोला है कि मिस्टर ए हैज रिसीव्ड फॉलोइंग कैश ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, कि मिस्टर ए को फ्रेंड से 30,000 मिले, मिस्टर ए को फादर से 30,000 मिले, उसके मैरिज पे 70,000 मिले, लोकल अथॉरिटी से 20,000 मिले और कोई दूसरा फ्रेंड है उधर से, ये भी फ्रेंड है, ये वाला भी फ्रेंड है, तो यहाँ से आपको इतने पैसे मिले। आपको बोलेंगे कि भाई मिस्टर ए को कितना कैश मिला है वो टैक्सेबल होगा, तो कैश वाला गिफ्ट है ना उसका हमें टोटल अलग से करके देखना है। अभी आपको क्या करना है, जब 50,000 का टोटल लेते हैं आपको क्या, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया, व्हाइल वी कैलकुलेटिंग 50,000 लिमिट द एग्जम्प्टेड गिफ्ट्स आर नॉट टू बी कंसीडर्ड, इसीलिए मैंने आपको एग्जम्पशन पहले पढ़ा। तो देखो अगर आपको फ्रेंड से गिफ्ट मिला है ये तो टैक्सेबल होने वाला है, ठीक है। अगर आपको फादर से मिला, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि फादर इज योर रिलेटिव, और फादर से गिफ्ट मिला तो क्या होगा, इट विल बी एग्जम्प्ट, तो ये टैक्सेबल नहीं होगा। मैरिज पे मिला क्या होगा, टैक्सेबल है एग्जम्प्ट? हेलो, एग्जाम एग्जाम मैरिज पे मिला वो भी एग्जम्प्ट हो जाएगा, इसको कैलकुलेशन में ले ही लेंगे। लोकल अथॉरिटी से मिला वो भी क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट, तो ये तीन तो एग्जम्प्ट। ओके, अभी अगेन फ्रेंड से मिला वो टैक्सेबल है, ठीक है। देखो फ्रेंड से मिला ये और ये टैक्सेबल है, ओके। तो अभी ये दोनों का मुझे क्या करना है, आई हैव टू डू दी टोटल, आई हैव टू डू दी एग्रीगेट। तो पहले फ्रेंड से मुझे 30,000 मिला और दूसरे फ्रेंड से भी 30,000 मिला और दोनों का टोटल हो गया 60,000। नाउ इफ इट इज एक्सीड 50,000 मतलब 50,000 से क्रॉस कर दिया तो व्हाट विल बी द टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट विल बी द एंटायर, मतलब पूरा 60,000 टैक्सेबल हो जाएगा। अभी आप समझ लो यही एग्जाम्पल के अंदर ये जो अमाउंट है ये मुझे 25,000 ही मिला होता तो देखो लेट 25 नहीं समझ लो 15,000 ही मिला, ओके 15,000 ही मिला है। तो देखो ये इतनी गिफ्ट मिली है, इसमें से ये और ये तो एग्जम्प्ट है, इसको कंसीडर करना नहीं है, टैक्सेबल दो ही है, ये 30,000 और ये 15,000। तो अगर 30 और 15 में करता हूँ तो दैट विल बी 30,000 प्लस 15,000, तो दैट विल बी 45,000। यहाँ पे क्या हो रहा है, द अमाउंट इज नॉट एक्सीडिंग, द एग्रीगेट इज नॉट एक्सीडिंग 50,000, तो ये 45,000 टैक्सेबल नहीं होगा। टैक्सेबल तभी होगा व्हेन योर टोटल एक्सीड्स 50,000। तो જેટલી કેશ મળી છે એમાંથી તમારે પહેલા શું કરવાનું, કઈ કેશ ટેક્સેબલ છે ફાઇન્ડ કરો। હવે ટેક્સેબલ નું ટોટલ કરો ને ટેક્સેબલ નું ટોટલ અગર 50,000 થી વધારે થયું તો પૂરેપૂરું અમાઉન્ટ ટેક્સેબલ અને 50,000 થી ઓછું થયું તો પૂરેપૂરું અમાઉન્ટ નોટ ટેક્સેબल। समझ में आया कैश का गिफ्ट? यस सर Yes, sir. Treatment of the cash gift. Okay, so this is the treatment. 50,000 हुई तो हाँ एग्जैक्ट 50,000 Yes, sir. राइट, नाइस क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इट एक्सीड्स 50,000, 50,000 से क्रॉस होता है तो मतलब एग्जैक्ट 50,000 मिले ना तो इट इज नॉट टैक्सेबल। लेकिन आपको कोई 50,000 एक दिया तो वो ना 1 रुपया वापिस दे दो उसको, लेकिन 50,000 एक लिया तो क्या होगा, पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, एंटायर अमाउंट विल बी टैक्सेबल। सो यहाँ एक्सीड बोला है मतलब 50,000 को क्रॉस करेगा तो टैक्सेबल होगा, मतलब एग्जैक्ट 50,000 होता है देन ऑल्सो इट इज नॉट टैक्सेबल। देखो इफ एग्रीगेट अमाउंट ऑफ ऑल द सम ऑफ मनी रिसीव्ड बाय एनी पर्सन विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम, देखो कैश आपको विदाउट कंसिडरेशन ही मिलता है, कोई તમને कैश गिफ्ट में આપે તો સામે તમારે કશું આપવાનું ના હોય, તમને कैश કોઈ આપી છે विदाउट कंसिडरेशन, और ये कैश अलग अलग लोगों से मिली है तो सबका आपको देखो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल ट्रांजेक्शन, मतलब आपको जितने भी गिफ्ट मिली है कैश में वो सबका टोटल करो और इफ दैट टोटल, और उसमें भी क्या देखना है, टैक्सेबल अमाउंट ही हमें देखना है, और वो टैक्सेबल अमाउंट 50,000 से क्रॉस हुआ टैक्सेबल
अगर टैक्सेबल अमाउंट का टोटल 50,000 से कम है, नॉट टैक्सेबल, एग्जैक्ट 50,000 है, नॉट टैक्सेबल, 50,000 से ऊपर गया पूरा अमाउंट टैक्सेबल, ठीक है। नाउ सपोज, तो ये हमने कैश के बारे में देखा, कैश में क्या क्या आ सकता है, यू कैन रिसीव इन द कैश, आइदर कैश, ड्राफ्ट, चेक, फॉरेन करेंसी, ये सब आपके लिए कैश कहा जाएगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, सपोज इफ यू रिसीव द मूवेबल प्रॉपर्टी एज ए गिफ्ट, अगर आपको मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिलती है तो क्या टैक्स ट्रीटमेंट है। देखो मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में हमने ऐसा पढ़ा है कि एनी प्रॉपर्टी विच कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज कॉल्ड मूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, इसको मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। व्हाट इज मूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम आवर एंगल, कि मूवेबल प्रॉपर्टी हम किसको कहते हैं, तो मूवेबल प्रॉपर्टी means any property which can be moved from one place to another place, that is called movable property। लेकिन ये सेक्शन के लिए आपको मूवेबल प्रॉपर्टी का वो डेफिनेशन भूल जाना है। यहाँ मूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स व्हाट, हियर मूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स ओनली दिस 8 आइटम्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब आपको गिफ्ट में 8 ही आइटम में से कुछ मिला है तो टैक्सेबल होगा, otherwise not taxable। So here what is movable property? Movable property does not mean any property which can be moved from one place to another place। Movable property here means only these 8 properties। Okay, so here what is movable property? See, shares and securities is a movable property। Jewelry if you have received as a gift taxable होगा। Okay, तो jewelry, bullion means what, ये वो प्योर जो गोल्ड का और सिल्वर का जो बिस्किट आता है ना, दैट इज कॉल्ड बुलियन। मतलब गोल्ड ज्वेलरी बनाया बिना का जो गोल्ड का जो बिस्किट आता है, दैट इज कॉल्ड बुलियन। ओके, तो इफ यू रिसीव द शेयर्स, सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, बुलियन, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन मतलब पौराणिक वस्तुओं, कोई बहुत जूनी पुरानी मूर्ति है, ओके, स्कल्पचर है, कोई पौराणिक वस्तु, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, कोई ड्राइंग, ओके, कोई पेंटिंग, ओके, पेंटिंग, स्कल्पचर और एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। देखो ओनली दिस 7 आइटम्स आर ट्रीटेड एज ए मूवेबल प्रॉपर्टी। शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, बुलियन, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग्स, पेंटिंग, स्कल्पचर और एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। ओके, सो सी these items are treated as ए मूवेबल प्रॉपर्टी। इसके अलावा किसी और प्रॉपर्टी, कार है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, ऑल दिस आर नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर दिस सेक्शन। वो आपके लिए मूवेबल प्रॉपर्टी होगा, बट फॉर दिस सेक्शन व्हाट इज मूवेबल प्रॉपर्टी, हियर मूवेबल प्रॉपर्टी मींस शेयर्स, ज्वेलरी, बुलियन, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर और एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। जब इतनी आइटम गिफ्ट में मिलती है तो ही आपको ये सेक्शन लागू पड़ेगा, अदरवाइज मूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आपको कोई कार गिफ्ट में दिया, किसी ने आपको समझ लो कंप्यूटर गिफ्ट में दिया, मोबाइल गिफ्ट में दिया, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। सिर्फ इतनी आइटम आपको गिफ्ट में मिलती है तो टैक्सेबल होती है। तो क्या 7 आइटम में समझ में आ गया, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, बुलियन, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर और एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। अभी देखो इसकी टैक्सेबिलिटी हम समझते हैं। इवन द मूवेबल प्रॉपर्टीज आर टैक्सेबल। देखो मूवेबल प्रॉपर्टी में देयर आर 2 पॉसिबिलिटी कि मूवेबल प्रॉपर्टी आपको मिलती है, तो मूवेबल प्रॉपर्टी में 2 पॉसिबिलिटी है कि यू मे हैव रिसीव्ड द मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसीडरेशन। विदाउट कंसीडरेशन मीन्स व्हाट, आपने एक भी रुपया नहीं पे किया और आपको गिफ्ट में किसी ने आके ज्वेलरी दे दी, शेयर्स दे दिए, बुलियन दे दिया, any work of art, archaeological collection, drawing, painting, sculpture, anything is given by them to you, then that is treated as okay। तो मतलब these 7 items, but you have paid nothing, then that is called without consideration। So one possibility is what, you may have received these without consideration, और there is another possibility, अभी आपको स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया था कि you may have paid the consideration, but that consideration paid by you is less than फेयर मार्केट वैल्यू। उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है उससे कम प्राइस पे के करके बाय किया है। सपोज 1 लाख की चीज आपको उसने 70,000 में दिया, तो यहाँ पे क्या गिफ्ट होगा, दिस डिफरेंस 30,000 इज अ गिफ्ट। और सपोज इफ यू रिसीव द मनी मतलब प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन, 1 लाख ની જ્વેલરી તમને આમ જ આપી દીધી મફતમાં,
तो दैट इज ऑल्सो गिफ्ट। तो यहाँ दोनों सिचुएशन में गिफ्ट है, और देखो दोनों को सेपरेट गिनना है, दोनों की टैक्स ट्रीटमेंट, दोनों की 50,000 लिमिट अलग अलग, ठीक है। तो यू कैन सी, अगर आपको मूवेबल प्रॉपर्टी मिली है, लेकिन क्या से विदाउट कंसिडरेशन, यू कैन सी द कैटेगरी नंबर 2 ऑफ द गिफ्ट, गिव द एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू। आपको यहाँ देखना क्या, ध्यान रखिए यहाँ पे कि जब मूवेबल प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट में मिलती है तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू आपको देखनी है। आपको क्या देखना है, यू हैव टू कंसीडर फेयर मार्केट वैल्यू, ओके। और उसका वो भी क्या देखना है, उसका एग्रीगेट टोटल। इफ द एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी इज रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन, यहाँ हम वही चीज देख रहे हैं which is received without consideration, एक भी रुपया पे किए बिना आपको मिला है, that is called received without consideration. So suppose if you have received the movable property without consideration, then what we are supposed to do, जितनी भी movable property आपको मिली है उसकी fair market value का आप total करो, and if it exceeds 50,000 then the whole of aggregate fair market value of the property is chargeable to tax। देखो यहाँ पे भी आपको सभी ट्रांजेक्शन, यहाँ ऑल ट्रांजेक्शन लिखा है, मतलब you are supposed to do the total of all the transaction। So we are discussing, let's see, we are discussing the category that if you have received the movable property। देखो मूवेबल प्रॉपर्टी में दो टाइप के ट्रांजेक्शन आते हैं, विद कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन। तो फर्स्ट वन इज दैट इफ यू हैव रिसीव्ड द मूवेबल प्रॉपर्टी વિધાઉટ કન્સિડરેશન, એટલે તમે કોઈને કશું ચૂકવ્યું નહીં પણ તમને કોઈ મૂવેબલ પ્રોપર્ટી गिफ्टમાં આપી, ओके। और मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आता है, वो सिर्फ 8 आइटम्स, ओके। आप समझ लो कि ये मेरा पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर है, ओके। और ये पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर है 2022-23, और ये 22-23 में मुझे अलग अलग लोगों ने मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में दी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि मिस्टर ए है, उसके फादर ने मिस्टर ए को एक गोल्ड चेन गिफ्ट में दी, और दैट गोल्ड चेन की जो फेयर मार्केट वैल्यू है, यहाँ पे मैं फेयर मार्केट वैल्यू लिखता हूँ, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द गोल्ड चेन इज ₹1 लाख, ओके। सपोज मिस्टर ए है, उसको उसके फ्रेंड ने, ओके, कुछ शेयर्स गिफ्ट में की दिए, और वो शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू 30,000 है, ठीक है। उसका एक दूसरा फ्रेंड है, वो फ्रेंड ने मिस्टर एक्स को एक कंप्यूटर गिफ्ट में दिया, लैपटॉप, और जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 45,000। मिस्टर ए की वाइफ है, वो वाइफ ने मिस्टर ए को एक स्कल्पचर मूर्ति गिफ्ट में दी, और वो स्कल्पचर की कीमत है 25 लाख रुपया, ठीक है। अभी मिस्टर ए है, उसको उसके एक दूसरे फ्रेंड ने मिस्टर ए को एक पेंटिंग गिफ्ट में दिया, और वो पेंटिंग की कीमत है 40,000 रुपया, ओके। नाउ इफ इट इज आस्क्ड टू यू दैट यू डिटरमाइन दैट व्हाट विल बी द टैक्सेबल, देखो ये सभी आइटम उसको विदाउट एनी कंसिडरेशन गिफ्ट में मिली है, तो सिर्फ विदाउट कंसिडरेशन वाले की कैटेगरी अलग है मूवेबल में, और विद कंसिडरेशन वाले की कैटेगरी अलग है, ओके। नाउ सपोज सी इफ यू रिसीव द गिफ्ट फ्रॉम फादर एंड दैट इज अ गोल्ड चेन जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, 1 लाख। टेल मी वेदर इट इज टैक्सेबल और नॉट, Not taxable. बिकॉज इट इज रिसीव्ड फ्रॉम फादर, फादर इज अ रिलेटिव, taxable, sir. विल बी एग्जम्प्ट, ये एग्जम्प्ट हो जाएगा। नाउ सपोज यू हैव रिसीव्ड दिस फ्रॉम द फ्रेंड 30,000, तो ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। Taxable. Taxable. टेल मी फ्रेंड ने कंप्यूटर गिफ्ट में दिया, टैक्सेबल होगा या एग्जम्प्ट? Exempt. Taxable. Exempt. फ्रेंड केम Exempt. नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी, वो 7 प्रॉपर्टी का लिस्ट बताया, उसमें कंप्यूटर नहीं फॉल हो रहा है, ठीक है। तो ये भले वैल्यू ज्यादा है, रिलेट फ्रेंड इज नॉट अ रिलेटिव, बट फिर भी वो नॉट टैक्सेबल होगा, क्योंकि दिस इज नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। अभी आपकी वाइफ ने आपको गिफ्ट दिया, और वो स्कल्पचर है जिसकी कीमत 25 लाख है, देखो वाइफ इज अ रिलेटिव, तो अगर उससे मिला तो वो भी क्या हो जाएगा, एग्जाम। Exempt. तो पेंटिंग दिया, पेंटिंग मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में फॉल होता है, और इसकी वैल्यू कितनी है, फेयर मार्केट वैल्यू 40,000, ओके। तो ये टैक्सेबल होगा। तो आपको दो ही आइटम टैक्सेबल है। अभी आपको देखो इंडिविजुअली नहीं देखना है, दोनों का टोटल करके देखना है,
अगर आपको ये नहीं मिला, अगर सपोज समझ लो 30,000 और 40,000 टोटल कितना हुआ 70,000, तो इट इज मोर देन ₹50,000, 50,000 से ज्यादा है, तो कितना टैक्सेबल होगा? ये द एंटायर अमाउंट 70,000 विल बी टैक्सेबल। लेकिन समझ लो कि ये 30,000 है और ये दूसरा वाला मुझे 15,000 का ही दिया। अगर ये टोटल 45,000 होता तो दिस विल एंटायर अमाउंट विल नॉट बी टैक्सेबल। तो यहाँ पे इस तरीके से किया जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हेलो, Yes, Yes, sir. sir. प्रॉपर्टी Yes, वाला पॉइंट। sir. तो मूवेबल Yes, प्रॉपर्टी sir. विदाउट कंसिडरेशन। अभी देखो यहाँ पे जितनी विदाउट कंसिडरेशन वाली आइटम है उसका ही टोटल करना है। अभी देखो और एक मूवेबल प्रॉपर्टी का पॉइंट है कि वेयर यू आर रिसीविंग द मूवेबल प्रॉपर्टी बट मूवेबल प्रॉपर्टी इज परचेज बाय यू फॉर अ इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। मतलब અહીંયા તમે એકદમ મફતમાં નથી મળતી, but you are paying something and you are getting, but whatever you have paid is less than fair market value. So point number 3 is that a category. Point number 3, if movable property is received for a consideration, suppose if you receive the fair market value, okay, if you receive the movable property, okay, when it is received for a consideration, uh, just a minute beta, I have to take a 2-minute break. I need a water. Sorry for interruption. Okay, let us continue. So suppose if you have received the movable property, or if you have received the movable property for a consideration, but whatever consideration you have paid is inadequate, मतलब any market value करता ओછી price તમે ચૂકવી છે. If the movable property is received for a consideration which is less than aggregate fair market value of the property, then what we are supposed to do? An amount exceeding 50,000, then the difference between the aggregate fair market value and the consideration is a taxable. मतलब आपको क्या करना है? You are supposed to do the aggregate of the fair market value of जो विदाउट कंसिडरेशन मिलता है उसकी ऑल टुगेदर कैटेगरी अलग है। और सपोज यहाँ पे आपको जो रिसीव कर रहा है कि सपोज इफ यू आर गेटिंग दी मूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आपको मूवेबल प्रॉपर्टी, देखो यहाँ पे भी मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब वही वो 8 आइटम को ही मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे आप मूवेबल प्रॉपर्टी को गिफ्ट में नहीं मिलता, बट यू आर परचेजिंग, आप उसको परचेज करते हो। लेकिन परचेज की जो प्राइस है वो प्राइस कैसी है? इट इज लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू से कम प्राइस पे आप बाय करते हो। तो ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस देखना है और फिर वो डिफरेंस का टोटल करना है, और वो टोटल अगर 50,000 से ज्यादा है तो टैक्सेबल होता है। तो यहाँ पे देखो, और इसको जो परचेस किया उसको वो उससे अलग रखना है, उसकी 50,000 लिमिट अलग है। सपोज समझ लो कि ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मिस्टर ए हैज परचेज 1 shares, okay, few shares, okay, for ₹50,000। उसने परचेस किया कितने में? 50,000 में। और ये शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? क्योंकि एज ऑन डेट उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 80,000। और ये शेयर्स इसने किससे परचेस किए? ओके, ही हैज परचेस फ्रॉम दी फ्रेंड। ओके, तो फ्रेंड से परचेस किए। ठीक, ये फर्स्ट चीज है। ठीक है, सेकेंड, सपोज मिस्टर ए हैज परचेस अ पेंटिंग, ओके, किसी से भी मार्केट से उसने पेंटिंग परचेस किया
फॉर ₹80,000, लेकिन ये पेंटिंग की फेयर मार्केट वैल्यू है 85,000। ओके, और ये इसने परचेस किया डायरेक्टली कोई फ्रेंड की दुकान से या कोई पहचान वाला है उसकी दुकान से आपने बाय किया, ठीक है। थर्डली, मिस्टर ए हैज परचेस अ गोल्ड चेन, गोल्ड चेन परचेस किया फॉर ₹90,000 और इसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 1,20,000, लेकिन ये इसने परचेस किया अपनी खुद की वाइफ से, ये वाइफ से परचेस किया। ओके, दैट गोल्ड चेन। नाउ पॉइंट नंबर 4, सपोज मिस्टर ए हैज परचेस अ ड्राइंग। ओके, कोई ड्राइंग है, ओके, कोई नक्शो છે, કોઈ ડ્રોઈંગ છે એને પરચેસ કર્યું 1,00,000 રૂપિયામાં, પણ એની ફેર માર્કેટ વેલ્યુ 1,50,000 રૂપિયા છે, and that he has purchased from the friend. Okay, now Mr. A has purchased one car from friend जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 1,00,000 रुपया, सॉरी उसको परचेज उसने 1,00,000 में किया और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 2,00,000 रुपया, और वो भी फ्रेंड से परचेज किया। Now in this case, if it is asked to you that you determine that what will be the taxable amount, so in that case how you will determine? You can see here, आपको डिफरेंस देखना है, इसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है 80,000 और आपने इसको परचेस कितने में किया 50,000 में। देखो किससे बाय किया है, अपने फ्रेंड से। क्या बाय किया है? शेयर्स, मतलब वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, फ्रेंड से बाय की है, रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आता। ये दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, 80,000 ની વસ્તુ તમને 50,000 માં મળી। ओके, तो व्हाट विल बी द डिफरेंस? डिफरेंस 30,000 विल बी टैक्सेबल। 30,000 वो टैक्सेबल होगा या नहीं अभी नहीं पता चलेगा, टोटल करने के बाद टोटल अगर 50,000 क्रॉस होता है तो टैक्सेबल, ठीक है। अभी मिस्टर ए ने पेंटिंग परचेस किया कितने में? 80,000 में। उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 85,000। किससे परचेस किया है? फ्रेंड से। तो यहाँ पे भी 5,000 आपके लिए गिफ्ट बनता है, नहीं बनता? बन रहा है, तो 5,000 विल बी टैक्सेबल। यस सर, यस, 85 में से 80 लेस करोगे, 5,000 विल बी टैक्सेबल। नाउ हियर यू आर परचेसिंग द गोल्ड चेन ऑफ ₹1,20,000 फॉर ₹90,000 ओनली, मतलब 90,000 पे करके ही 1,20,000 की चीज बाय करते हो, लेकिन किससे? वाइफ से। तो वाइफ से कुछ भी मिलता है, भले वो डिफरेंस है, ओके, ज्यादा है, कुछ देखना नहीं है। अगर रिलेटिव से कुछ भी मिलता है, भले आप बाय करते हो, लेकिन ये बाय इसीलिए हुआ और यहाँ ये डिफरेंस इसीलिए आपको मुफ्त में मिला क्योंकि वो रिलेटिव है। तो रिलेटिव से मिला, एग्जाम्ड है, ठीक है, तो एग्जाम्ड हो जाएगा। देखो यहाँ पे आप ड्राइंग बाय करते हो 1,00,000 रुपए में, जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 1,50,000 रुपये। तो ये दोनों के बीच का अगर हम डिफरेंस देखेंगे, देखो ड्राइंग इज ऑल्सो मूवेबल प्रॉपर्टी और फ्रेंड से बाय किया है, तो दैट विल बी टैक्सेबल। तो ये 50,000 का जो ये दोनों के बीच का डिफरेंस 50,000 है, वो टैक्सेबल होगा। और यहाँ पे देखो आप कार बाय करते हो, किससे? फ्रेंड से, और यहाँ कार की वैल्यू आप 1,00,000 पे करते हो, लेकिन उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 2,00,000। तो टेल मी द डिफरेंस इज टैक्सेबल और नॉट? नॉट, नो, Not. क्यों नहीं टैक्सेबल होगा? बिकॉज कार इज Not taxable. Not movable property. हाँ, सही है ना, कार इज नॉट अ मूवेबल एसेट, तो नॉट टैक्सेबल। अभी आपको देखो यहाँ पे इस सबका टोटल करके देखना है कि भाई ये 30,000 है, ये 5,000 है और ये 50,000 है। तो माय टोटल इज 85,000 विच इज मोर देन 50,000, सो एंटायर अमाउंट इज टैक्सेबल। तो समझ लो ये गिफ्ट आपको नहीं मिला होता 50,000 वाला, तो ये दोनों का टोटल कितना होता है? सिर्फ 35,000। ये 50,000 से कम है तो ये टैक्सेबल नहीं होता। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? यस Yes, सर, sir. Yes, sir. Yes. लेट अस ये 2 पॉइंट है गिफ्ट के, वो कंप्लीट करते हैं हम, ठीक है। जल्दी नहीं है ना बेटा, ये 2 पॉइंट कंप्लीट कर लेता हूँ इमूवेबल एसेट वाला, ठीक है। ओके सर, ओके सर, ओके, Okay, sir. तो लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट। अभी देखो हमने मूवेबल प्रॉपर्टी में 2 देखे, एक विद कंसीडरेशन, एक विदाउट कंसीडरेशन। वैसे ही इमूवेबल प्रॉपर्टी में देखना है। देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑल टुगेदर डिफरेंट, ये इसकी 50,000 की लिमिट भी अलग है और इसको अलग से ट्रीट हमें करना है। नाउ सी यू कैन सी द मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आता है? यस, कि व्हाट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। हियर यू कैन सी इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखो आपके लिए बहुत सारी प्रॉपर्टी इमूवेबल होगी, लेकिन यहाँ पे ये डेफिनेशन में इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब आइदर लैंड
और बिल्डिंग और लैंड एंड बिल्डिंग का कॉम्बिनेशन। तो लैंड एंड बिल्डिंग और लैंड बिल्डिंग एंड लैंड एंड बिल्डिंग, ओनली दिस थ्री प्रॉपर्टीज आर ट्रीटेड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, अभी इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपको गिफ्ट में मिलती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट में मिलती है, तो आपको टैक्सेबल कब होगी? तो यहाँ पे देखो, इमूवेबल प्रॉपर्टी में देखो ऊपर के 3 पॉइंट मैंने आपको पढ़ा है। यहाँ ये सभी में क्या लिखा, देखो ऑल ट्रांजेक्शन, यहाँ पे क्या लिखा था ऑल ट्रांजेक्शन, यहाँ पे क्या लिखा था ऑल ट्रांजेक्शन। इसीलिए मैं सबका टोटल करके 50,000 हो रहा है या नहीं हो रहा है वो चेक करता था। यहाँ पे आपको ऑल ट्रांजेक्शन नहीं देखने, यहाँ पे आपको सिंगल सिंगल ट्रांजेक्शन देखने हैं, और वो पर्टिकुलर सिंगल ट्रांजेक्शन इज मोर देन 50,000 देन टैक्सेबल। इफ द पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन वैल्यू इज नॉट मोर देन 50,000 नॉट टैक्सेबल। लेट अस डिस्कस, देखो अबाउट द इमूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, पहले प्रोविजन पढ़ लेते हैं। If you receive the immovable property without consideration, suppose आपको immovable property मिल रही है without consideration, चाबी लेने दे दो करके, वो पाछो ऑफिस जैसा बना। Okay, so if any immovable property is received without consideration, okay, then the stamp duty value of the property exceeds 50,000, then stamp duty value will be taxable, and here what we have to do, we have to consider the single transaction. तो सबसे पहले कि ये कैटेगरी किस चीज की है, इट इज ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी है ये। ओके, और ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में दो कैटेगरी आती है। उसमें पहली कैटेगरी है कि इफ यू हैव रिसीव्ड द इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन, मतलब यू हैव पेड नथिंग बट यू हैव रिसीव्ड द प्रॉपर्टी इन अ गिफ्ट। और वो भी कौन सी वाली प्रॉपर्टी, इमूवेबल। इमूवेबल मतलब व्हाट, लैंड, बिल्डिंग, या तो फिर लैंड एंड बिल्डिंग, इसमें से कुछ आपको गिफ्ट में मिलता है। तो यहाँ पे देखो, उसमें मैंने क्या देखा था कि आपको फेयर मार्केट वैल्यू देखनी है। यहाँ पे आपको वो प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखनी है, मार्केट वैल्यू नहीं જોવાની। અહીંયા આપણે શું જોવાનું, સ્ટેમ્પ ડ્યુટી વેલ્યુ। यानी मार्केट वैल्यू कितनी છે, वी आर लिस्ट कंसर्न विद दैट, वो गिफ्ट टैक्सेबल होगी या नहीं होगी। तो हर एक जो लैंड होती है, बिल्डिंग होती है, उस पर गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी लेती है जब ट्रांसफर करते हैं। तो और वो स्टैम्प ड्यूटी डिटरमाइन करने के लिए गवर्नमेंट ने वो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू निकाली उसको हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कहते हैं। આપણે એને ગુજરાતીમાં કહીએ તો જંત્રી કહેવાય, બરાબર, જંત્રી। એ જંત્રી કિંમત છે ને એને જ આપણે શું કહીએ છીએ, સ્ટેમ્પ ડ્યુટી। જે વેલ્યू पर स्टैम्प ड्यूटी गवर्नमेंट चार्ज करती है આપણે स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कही सकती है। ओके, तो यहाँ पे आपको ये प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखनी है हमें। इसकी वी डोंट हैव टू कंसीडर इट्स फेयर मार्केट वैल्यू। ओके, फेयर मार्केट वैल्यू से हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। वी आर कंसर्न विद व्हाट, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। और ये हम कौन सा वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं कि यू आर रिसीविंग द इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन। सपोज आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली है विदाउट एनी कंसिडरेशन, तो हाउ टू गिव द टैक्स ट्रीटमेंट फॉर द सेम। और देखो यहाँ पे आपको एक स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखनी है, और यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है, द इम्पोर्टेंट एंड डिफरेंट पॉइंट हियर is what, here you have to consider a single transaction। मतलब बाकी सब में मैं क्या करता था, टोटल करता था, यहाँ आपको सिंगल ट्रांजेक्शन देखना है। ओके, लेट अस डिस्कस कि लाइक सपोज मिस्टर ए को किसी ने एक घर मतलब बिल्डिंग गिफ्ट में दिया। ओके, बिल्डिंग इज गिवन इन द गिफ्ट। ओके, किसने दिया, तो कि भाई वो मिस्टर ए को, मिस्टर ए का कोई फ्रेंड है, उसने दिया वो बिल्डिंग। और ये बिल्डिंग की जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 35,000। ओके, 35,000, सॉरी 35,000। अभी यही मिस्टर ए को एक दूसरा फ्रेंड एक दूसरी बिल्डिंग देता है, वो भी गिफ्ट में देता है, और उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू समझ लो वो भी 35,000 है। अभी तीसरा फ्रेंड देता है, वो भी बिल्डिंग गिफ्ट में देता है, और वो गिफ्ट में देता है, और इसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 2,50,000। ओके, अभी एक उसका फादर है मिस्टर ए का, वो उसको बिल्डिंग गिफ्ट में देता है, और ये प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 5 लाख रुपये। ठीक है, और इफ इट इज आस्क्ड टू यू that you determine that what will be the taxable amount। अगर आपको ये सिचुएशन में पूछा है कि इसका टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा,
तो आपको क्या करना है, एक एक ट्रांजेक्शन सिंगल ही देखना है, टोटल नहीं करना है, ध्यान रखिए। तो यहाँ एक बिल्डिंग है, गिफ्ट में मिली है और वो भी फ्रेंड से मिली और उसकी स्टैम्प ड्यूटी 35,000 है। 50,000 से ज्यादा है या नहीं? नहीं है, तो ये नॉट टैक्सेबल नहीं। हो। अभी देखो दूसरा ट्रांजेक्शन सेम टू सेम ऐसा है कि मिस्टर ए को गिफ्ट में बिल्डिंग मिली है और जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 35,000 है, तो ये भी नॉट टैक्सेबल हो जाएगा। आप बोलोगे सर टोटल ना कही सके 35 ने 35 70, नो, ये ट्रांजेक्शन अलग है, ये ट्रांजेक्शन अलग है, दोनों का टोटल नहीं करना है आपको। मैंने क्या बताया, यू हैव टू टेक अ सिंगल ट्रांजेक्शन, तो हर एक ट्रांजेक्शन को सिंगल ही सेपरेटली ट्रीट करो। तो ये 35 और 35 मिक्स नहीं करना है, ये नॉट टैक्सेबल हो गए दोनों, क्योंकि दोनों सेपरेट ट्रांजेक्शन है। ऊपर मैंने क्या पढ़ा है, सबका टोटल करके देखो, यहाँ टोटल नहीं करना है। ओके, तो यहाँ टोटल नहीं करें मतलब ये भी नॉट टैक्सेबल हो जाएगा, पहले वाला भी दूसरे वाला भी नॉट टैक्सेबल। अभी तीसरा वाला देखते हैं कि मिस्टर ए को बिल्डिंग दिया है और वो भी फ्रेंड ने, और वो गिफ्ट में दिया और जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है, 2,50,000, मतलब 50,000 से ज्यादा है, यस और नो? यस सर। तो Yes. क्या Yes, होगा, sir. it will be taxable, ये टैक्सेबल हो जाए। ठीक है, अभी देखो ये चौथा बिल्डिंग मिला है मिस्टर ए को, लेकिन ये किससे मिला है, फादर से। फादर। फादर से मिला है तो टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? Not taxable. नो टैक्सेबल। Not taxable. ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान क्या रखना है बेटा, आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखनी है। यू डोंट हैव टू डू द एग्रीगेट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन एंड यू हैव टू कंसीडर द सिंगल ट्रांजेक्शन। तो दिस इज द पॉइंट हियर इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। और इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता क्या है, लैंड, बिल्डिंग या तो फिर लैंड एंड बिल्डिंग बोथ, इतना ही आएगा। ठीक है, वन लास्ट पॉइंट दैट वी विल गोइंग टू डिस्कस हियर, कि सपोज आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट में नहीं मिली है, लेकिन आपने परचेस की है, और वो परचेस किया है, वो परचेस प्राइस और उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का डिफरेंस आपको देखना है, और वो डिफरेंस अगर 50,000 से ज्यादा है तो टैक्सेबल। ठीक है, तो इफ यू देखो यहाँ क्या पॉइंट कहता है, इफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी इज रिसीव्ड फॉर अ कंसीडरेशन, आपने कंसीडरेशन पे किया है, बट वो कंसीडरेशन क्या चाहिए, लेस देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, then amount exceeding higher of 50,000 or 10% of consideration, then the difference between the stamp duty value and the consideration chargeable to tax is chargeable to tax। देखो यहाँ दो चीजें ध्यान में रखनी है कि if the movable property is received for a consideration which is less than stamp duty value, then the stamp duty value of the property by amount exceeding higher of 50,000 or 10% of consideration, then the difference between the stamp duty value and the consideration is chargeable। okay, मतलब ये दोनों में से जो हायर है उतना डिफरेंस होना चाहिए। लेट अस डिस्कस एग्जांपल्स, यू विल गेट द क्लैरिटी। ओके, लाइक सपोज समझ लो एक सिंगल, देखो इसको इसके साथ मिक्स नहीं करना है, ये पूरा ट्रांजेक्शन अलग है, क्योंकि उस यहाँ आपको पूरी बिल्डिंग आपको गिफ्ट में फ्री में मिलती है और यहाँ पे आप बाय करते हो। नो सपोज क्या ट्रांजेक्शन बोला गया, सपोज समझ लो कि यू आर बाइंग दी इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता क्या है, या तो लैंड या तो बिल्डिंग या तो फिर लैंड एंड बिल्डिंग। लेकिन ये पॉइंट उससे क्यों अलग है, क्योंकि वहां पे आपको फ्री में बिल्डिंग मिलती थी, यहाँ पे आप इनएडिक्वेट कंसीडरेशन पे करते हो। मतलब कंसीडरेशन पे करते हो, आप खरीदते हो लेकिन कम कीमत देते हो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से, तो टैक्सेबल होगा। तो अभी टैक्सेबल कितना अमाउंट होगा, सपोज you have purchased the property from a unknown person, immovable property। okay, सपोज आपने एक बिल्डिंग बाय की, if you buy the building, okay, and building buy by you is for ₹5 lakh, आपने 5 लाख में ये बिल्डिंग बाय की। ठीक है, आपने बिल्डिंग कितने में बाय की, 5 लाख में। और सपोज द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, ये प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 4 लाख रुपया। ओके, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस, समझ लो ये प्रॉपर्टी की वैल्यू 6 लाख रुपये है, मुझे एक्सप्लेन करने में इजी पड़ेगा। 6 लाख रुपया है और आपको समझने में इजी पड़ेगा। 6 लाख रुपया, और इसको आपने बाय कितने में किया, 6 लाख में।
और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है 4 लाख। तो आपको क्या करना है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। सॉरी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सपोज समझ लो 4 लाख नहीं, यहाँ पे ज़्यादा होनी चाहिए। समझ लो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज 8 लाख। ऐसी सिचुएशन कि 8 લાખની સ્ટેમ્પ ડ્યુટી વેલ્યુ છે, તમે ખરીદો છો કેટલામાં 6 લાખમાં। 8 લાખની સ્ટેમ્પ ડ્યુટી વેલ્યુ છે અને તમે ખરીદો છો 6 લાખ રૂપિયા। તો સી હિયર યુ કેન સી ધ ડિફરન્સ 8 લાખ माइनस 6 लाख आप करोगे तो डिफरेंस इज हाउ मच, डिफरेंस इज 2 लाख। और कंसीडरेशन का 10% जितना अगर डिफरेंस है, आपने कंसीडरेशन कितना पे किया है, हाउ मच कंसीडरेशन यू हैव पेड 6 लाख का 10% कितना होता है 60,000। ये दोनों को आपको कंपेयर करना। और इफ अमाउंट इज मतलब डिफरेंस इज हायर देन, अगर आपका ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस, ये दोनों में से जो हायर होगा, विच एवर इज हायर विल बी टैक्सेबल। ओके, मतलब यहाँ यू कैन सी द पॉइंट हियर, व्हाट इज मेंशन हियर, इफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज रिसीव्ड फॉर अ कंसीडरेशन which is less than the stamp duty value of the property, then property by amount exceeding, okay, अगर वो difference कितना है, the ₹50,000 or 10% of the consideration, okay, then the difference between the stamp duty value and the consideration is chargeable to tax। मतलब यहाँ पे देखो 50,000 की लिमिट हर बार एप्लीकेबल नहीं होगी, हर बार 50,000 की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। देखो यहाँ पे डिफरेंस इज 2 लाख, डिफरेंस विल बी टैक्सेबल। એટલે તમારે હંમેશા શું જોવાનું આવે, બીજો એક એક્ઝામ્પલ તમને આપું એટલે યુ વિલ ગેટ મોર ક્લેરિટી। અહીંયા તો સમજાય ગયું 8 લાખની પ્રોપર્ટી છે, 100 લાખમાં બાય કરી તો डिफरेंस इज 2 लाख, 50,000 से ज्यादा है। और ये 10% मैंने क्या लिया, ये 10% ये यहाँ आपको कंपैरिजन के लिए नहीं देना है, आपको यहाँ देखना है कि आपका जो डिफरेंस है वो कंसीडरेशन के 10% से ज्यादा है या नहीं है। अगर ये दोनों में से जो हायर है उससे ज्यादा है तो टैक्सेबल होगा। अभी आपको मैं समझाता हूँ कि सपोज आपने एक प्रॉपर्टी बाय की फॉर ₹8 लाख, ओके, आपने प्रॉपर्टी कितने में बाय की 8 लाख, एंड आपने 8 लाख में एक प्रॉपर्टी बाय की और ये प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 8,70,000। The stamp duty value is how much, 8,70,000। So you can see here you are getting a gain। देखो यहाँ पे आपको कितना, ये दोनों के बीच का ये आपका कंसीडरेशन है, ये इसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है। ओके, तो आपको क्या देखना है कि अगर ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, देखो यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है, द डिफरेंस इज 70,000। 70,000 टैक्सेबल कब होगा, या तो वो 50,000 या तो कंसीडरेशन के 10% से ज्यादा है तो टैक्सेबल होगा। तो देखो यहाँ मेरा कंसीडरेशन कितना है 8 लाख, और 8 लाख का 10% कितना होता है 80,000। और ये दोनों में से हायर कौन सा है, 80,000 इज हायर। और सी अगर ये 80,000 से ज्यादा होगा डिफरेंस तो टैक्सेबल, अदरवाइज नॉट टैक्सेबल। 80,000 से ज्यादा है तो टैक्सेबल, अदरवाइज नॉट टैक्सेबल। तो यहाँ मेरा डिफरेंस कितना है, ओनली 70,000, नॉट टैक्सेबल। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? अगर नहीं समझ में आया मैं आपको फिर से बताता हूँ अगेन, कि आपको ऐसी सिचुएशन में सिर्फ डिफरेंस अकेला नहीं देखना है, डिफरेंस और 50,000। ओके, देखो आपको ये देखना है कि सपोज वही एग्जांपल फिर से बता रहा हूँ कि मेरे पास 8 लाख की प्रॉपर्टी मैंने बाय की और वो प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है 8,70,000। ओके, जनरली नॉर्मल केस में આપણે શું કરીએ, આ બે વચ્ચેનો ડિફરન્સ કાઢીએ કે ભાઈ 870 અને 8 બે વચ્ચેનો ડિફરન્સ 70,000 છે, 50,000 કરતા વધારે છે એટલે ટેક્સેબલ થશે। અહીંયા આપણે આ એક કન્ડિશન એકલી નથી જોવાની, અહીંયા તમારે બે વસ્તુ જોવાની છે। You have to find out the first of all the difference। okay, you have to find out the first of all the difference। okay, तो आपने डिफरेंस फाइंड कर लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव फाइंड आउट द डिफरेंस। यस, आपको पहले डिफरेंस निकाल देना है कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। तो मैंने कैलकुलेट कर दिया भाई, माय डिफरेंस बिटवीन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड फायर मार्केट वैल्यू 70,000। હવે 70 सीधा ટેક્સેબલ થશે કે નહીં એ તમારે પહેલા નહીં વિચારવાનું, પહેલા શું જોવાનું કે 70 તમે આ કન્સિડરેશન છે ને એના 10% નિકાલો। કન્સિડરેશનના 10% કેટલા થયા 80,000, અને પછી આપણી 50,000 ની લિમિટ છે 50,000 લખીશું। આ બેમાંથી હાયર કેટલું છે
તો કે આ બેમાંથી હાયર છે 80,000. જો આ ડિફરન્સ 80,000 કરતા વધારે છે તો ટેક્सेबल, 80,000 करता ओछो છે तो नॉट टैक्सेबल. तो यहाँ पे मेरा डिफरेंस 70,000 है जो 80,000 से कम है. मेरे कंसिडरेशन के 10% से मेरा डिफरेंस कम है, मतलब कंसिडरेशन के 10% और कंसिडरेशन और 50,000, ये दोनों को कंपेयर करके एक मैंने हायर वाला फिगर निकाला. और ये हायर वाला फिगर से अगर मेरा डिफरेंस कम है तो ये टैक्सेबल नहीं होगा. अगर समझ लो यहाँ पे ये दोनों के बीच का डिफरेंस 90,000 होता तो ये 80,000 से ज्यादा है तो टैक्सेबल होगा. ओके, लेकिन यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, ट्रांजेक्शन को सिंगली 1 बाय 1 देखना है. देखो इसका एक दूसरा एक एग्जांपल देते तो आपको थोड़ा और समझ में आए. कि समझ लो कि मेरी एक प्रॉपर्टी है जो मैंने बाय की 3 लाख रुपये में, और वो प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू होती है 4,50,000 रुपये. प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी होती है? 4,50,000. और मैंने बाय कितने में की? तो दिस इज दी SDV स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, दिस इज दी कंसिडरेशन. और देखो 4,50,000 की चीज मुझे 3 लाख में मिलती है. व्हाट इज द गिफ्ट इन माय हैंड? 1,50,000. लेकिन देखो यहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी है और मैं लेस देन कंसिडरेशन, मतलब इनएडिक्वेट कंसिडरेशन से बाय करता हूँ. कि डिफरेंस सीधा टैक्सेबल होगा या नहीं वो मुझे देखना है. पहले देखो मैं क्या करूंगा, पहले मैं अपना डिफरेंस 50,000 की लिमिट है वो लिखूंगा और मेरे कंसिडरेशन का 10%. यहाँ मेरा कंसिडरेशन कितना है? 3 लाख. तो इसका 10% कितना होता है? 30,000. अब ये दोनों में से हायर कौन सा है? 50,000. ये मेरा डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है, यस, तो दिस विल बी टैक्सेबल. अगर इससे कम है तो नॉट टैक्सेबल. अगर ये डिफरेंस मेरा 40,000 होता तो नॉट टैक्सेबल होता. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू दिस पॉइंट? Yes, sir. Okay, I hope that you have understood this point very well. Okay, so we have discussed this point of gift. देखो किसको गिफ्ट कहते हैं, ये हमने डिस्कस किया कि गिफ्ट किसको कहते हैं. गिफ्ट के अलग अलग टाइप क्या है. और इट कैन बी ए कैश, इट कैन बी ए मूवेबल प्रॉपर्टी और इट कैन बी ए इमूवेबल प्रॉपर्टी. कैश में सिर्फ एक ही कैटेगरी के सिर्फ कैश आपको विदाउट कंसिडरेशन मिलती है. लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी में 2 कैटेगरी है, विद कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन. इसकी 50,000 लिमिट अलग है, इसकी 50,000 लिमिट जो डिफरेंस निकालते हैं वो अलग है. यहाँ पे आपको सिंगल ट्रांजेक्शन देखने हैं, लेकिन विद प्रॉपर्टी मतलब विदाउट कंसिडरेशन की 50,000 लिमिट अलग है, विद कंसिडरेशन की 50,000 लिमिट अलग है. और यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, इन केस वेयर द डेट ऑफ एग्रीमेंट ऑफ परचेज and fixed consideration and the date of registration are different, taxability will be determined with reference to the stamp duty value on the date of agreement and not on the date of registration. સમજી લો કે લેન્ડ, બિલ્ડિંગ, પ્રોપર્ટી, એ કેસની અંદર શું થાય કે તમે પહેલા કોકની જોડે એગ્રીમેન્ટ કરો કે હું તારી પાસેથી આ પ્રોપર્ટી ખરીદીશ. પછી એગ્રીમેન્ટ થયા પછી 2 મહિના પછી તમે એની પાસેથી પ્રોપર્ટી ખરીદતા હોય, બરાબર. સ્ટેમ્પ ડ્યુટી કયા દિવસની લેવાની આ ડિફરન્સ નીકાળવા માટે? तो તમારે સ્ટેમ્પ ડ્યુટી કયા દિવસની લેવાની? યુ હેવ ટુ ઓલવેઝ ટેક ધ સ્ટેમ્પ ડ્યુટી વેલ્યુ ઓન ધ ડેટ ઓફ એગ્રીમેન્ટ. ધીસ ઇઝ વોટ ધીસ પોઈન્ટ સેઝ. This exception will apply only where the part consideration has been paid by the any mode other than cash on or before the such agreement. અને આ એક્સેપ્શનમાં આપણે એગ્રીમેન્ટના દિવસની સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ત્યારે જ લેવાની કે જ્યારે તમને થોડાક ઘણા પૈસા કન્સિડરેશન તરીકે ચૂકવી દીધા હોય ત્યારે. સપોઝ નથી કર્યા તો પછી રજિસ્ટ્રેશનના દિવસની જ સ્ટેમ્પ ડ્યુટી વેલ્યુ કન્સિડર કરવાની. બે અલગ અલગ ડેટ હોય કે ભાઈ આ તારીખે એગ્રીમેન્ટ કરીને આ દિવસે તમે એક્ચ્યુઅલ ટ્રાન્ઝેક્શન કર્યું તો કયા દિવસની સ્ટેમ્પ ડ્યુટી વેલ્યુ રહીશ? તો જો તમે થોડા ઘણા પૈસા ચૂકવી દીધા છે તો સ્ટેમ્પ ડ્યુટી કયા દિવસની લેશો? એગ્રીમેન્ટના દિવસની. અધરવાઇઝ તમારે હંમેશા સ્ટેમ્પ ડ્યુટી વેલ્યू કયા દિવસની લેવાની? ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. ये 5 पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किए. व्हाट इज गिफ्ट, उसके क्या एक्सेप्शन है वो हमने डिस्कस किए. रिलेटिव किसको बोलते हैं वो हमने डिस्कस किया. अभी ये गिफ्ट से रिलेटेड ही कुछ सम्स है जो हम ये कल हम ये गिफ्ट के सम्स ही करेंगे, क्योंकि काफी सारे सम्स गिफ्ट के दिए हुए. फिर यहाँ से एक नया पॉइंट चालू होता है. ओके, तो यहाँ से नया पॉइंट चालू होता है यहाँ से. तो यहाँ तक आपको 2-3 एग्जाम्पल है गिफ्ट के, वो हम कल सॉल्व करेंगे और फिर दूसरे टेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे. प्रोबेबली डे आफ्टर, कल तो नहीं हो पाएगा चैप्टर कंप्लीट, लेकिन डे आफ्टर टुमारो ऑन सैटरडे इवनिंग एट दिस टाइम आई विल कंप्लीट दिस लेक्चर. ओके, I hope that today whatever I have discussed with you is understand by all of you. सबको समझ में आ गया. नहीं समझ में आया है you can call me. You can also review this video again. Okay. Yes. Okay.
I will stop the recording first, then I will leave the lecture. If you want to leave, you can leave. Okay. Good night to all of you. Sir, Good night, sir. thank Good you. night, sir. સર રેકોર્ડિંગ Yes, sir. સ્ટાર્ટ કરજો શું કહો છો બેટા? Hello, sir. Sir, ये not taxable